السلام علیکم ویورز اینڈ ریڈرز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب بالکل ٹھیک ٹھاک ہوگے، ایک دم خیریت سے ہوں گے۔ تو جی جناب، ویلکم ٹو بیک مائی چینل ناول سب۔ ہم لوگ کا جو ناول ہے دا بیوٹی اینڈ پیس لو، از قلم سمرین جاوید۔ چلے جی پڑھتے ہیں ہماری اس ناول کے آج کی دوسری قسط کی جانب۔ وہ دونوں اس بزرگ کو لے کے ہسپتال آئے تھے۔ رکشے والے نے بھی حالات کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے ہمدردی دکھاتے ان سے کرایہ نہیں مانگا تھا، اور وہ دونوں اس آدمی کو لے ہسپتال میں داخل ہوئے تھے۔ بھیا سنیے پلیز، ان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، حالت خراب ہو رہی ہے، خون بہہ رہا ہے، بزرگ جان ہے، انہیں ٹریٹمنٹ دینا، ڈاکٹر کو بلوا دے۔ ذیشا نے سامنے لڑکی کو دیکھتے ہوئے کہا تھا جو کہ ریسیپشن پہ کھڑا تھا، یہ تو پولیس کیس بنتا ہے۔ اس لڑکے نے اس کی بات کو اگنور کرتے ہوئے اپنی بات کہی تھی، جسے سن ذیشان کا رہا سہا میٹر بھی گھوم گیا تھا۔ جتنا پوچھا جائے اتنا جواب دینا، اپنی ہانکنے مت لگ جانا چاہیے، اگر کرنا ہو تو تب بھی بتاؤ، نہیں کرنا ہو تب بھی، یہ فالتو کے مشورے نہیں دو۔ عجیب لوگ ہو، یہاں خون بہہ کر ضائع ہو رہا، انہیں علاج کی ضرورت ہے اور تم لوگوں کو پولیس کیس کی ہے۔ ذیشان اسے غصے سے دیکھتے ہوئے اتنی زور سے کہا تھا کہ اس آس پاس کے لوگ کھڑے ہو کر اسے سننے لگے تھے۔ او ہیلو، تم کتنی چھٹانک بھر کے اور مجھے سنا رہے ہو؟ پہلے مدد کرنے کی ہائٹ تک تو پہنچو، پھر مدد بھی کر لینا۔ اس لڑکی نے اپنی بےعزتی ہوتے دیکھ غصے سے کہا تھا، مدد کے لیے ہائٹ کی ضرورت نہیں ہوتی، بس جذبے کی ضرورت ہوتی ہے، جو ہم جیسے چھوٹے لوگوں میں ہوتی ہے۔ تم جیسے بڑے لوگوں کو عقل تو گھٹنوں میں ہوتی ہے، جذبہ کیا خاک ہوگا۔ انسان کی باتیں ہی اس کا عکس ہوتی ہے، اس لیے جب بندہ مدد نہیں کر سکتا، جو مدد کر رہا اس پہ تنقید نہیں کرنی چاہیے، بلکہ مدد کرنی چاہیے۔ اگر اتنی بھی توفیق نہ ہو تو خدا کے لیے منہ بند رکھا کرو۔ ذیشان نے بھی بدو جواب دیا تھا، وہ شرمندہ سا ہو کر رہ گیا تھا۔ کیا ہو گیا ہے بیٹا؟ مجمع میں موجود ایک آدمی نے پوچھا تو اس کی باتوں سے متاثر ہوا تھا، اس کے پاس آیا تھا۔ کچھ نہیں سر، ان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، وہاں بھی کوئی مدد نہیں کر رہا تھا، بلکہ پولیس کیس کا شوشہ تھا۔ میں وہاں سے لے کر یہاں آیا ہوں تو یہاں بھی یہی بے تکی باتیں ہو رہی۔ کیا پولیس کیس انسان کی جان سے زیادہ ہے؟ پولیس آنے میں بھی ٹائم لگے گا، بھلے تب تک خدا نہ کرے انسان کی جان نکل جائے۔ یہ سب قواعد و ضوابط تو انسانوں نے خود بنائے ہیں، ان کی پیروی ان حالات میں کرنا اتنا ضروری تو نہیں ہوتا نا؟ ذیشان نے اس آدمی کو دیکھتے ہوئے کہا تھا، جبکہ وہ اس کی باتیں سن اور زیادہ متاثر ہو چکے تھے۔ شکل سے تو کوئی اچھی فیملی سے تعلق رکھنے والے لگ رہے تھے۔ کوئی بات نہیں، لوگوں کا کام ہوتا ہے بولنا، انہیں بولنے دینا چاہیے۔ چلو میں تمہاری مدد کرتا ہوں، اور ساتھ میں نے کہا تو آگے بڑھ کر اس بزرگ کا اٹھایا تھا، جنہیں رانی نے کرسی پہ بٹھا دیا تھا۔ وہ اسے اٹھائے کمرے میں لے کر گئے تھے، جن کے پیچھے رانی اور ذیشان بھی گئے تھے۔ اس آدمی نے اس بزرگ کا علاج کروایا تھا، جسے یہ تو پتہ چل گیا تھا کہ وہ یہاں کافی لوگوں کو جانتا ہے۔ بزرگ کا علاج کروا کر اسے ان کے گھر کا راستہ پوچھ کر انہیں ان کے گھر تک پہنچا کر آئے تھے وہ۔ تھینک یو سر، آپ نے ہماری مدد کی، اس سے ثابت ہوتا ہے کہ دنیا میں انسانیت ابھی بھی باقی ہے۔ ذیشان نے اس آدمی کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا تھا، کوئی بات نہیں بیٹا، اپنے درد پر آنسوؤں کا آ جانا انسانی فطرت ہے۔ انسانیت اسے نہیں کہتے، بلکہ دوسروں کے درد پر آبدیدہ ہو جانے کو انسانیت کہتے ہیں۔ اور تمہاری باتوں نے آج مجھے بہت کچھ سمجھایا ہے۔ تم دونوں میں واقعی بہت جذبہ اور لگن ہے، اور سب سے بڑھ کر انسانیت ہے، انہوں نے مسکراتے ہوئے کہا تھا، جس پر وہ دونوں بھی مسکرا کر رہ گئے تھے۔ ذیشان، چلو شام ہونے کو آئی ہے، رانی نے شام کو اپنا بسیرا کرتا دیکھ ذیشان سے کہا تھا، کیونکہ اس کے ابو کی دوائی کا ٹائم بھی ہونے والا تھا اور وہ بھوکے بھی ہوں گے۔ یہاں ان کے حالات میں وقت کیسے گزرا پتہ ہی نہیں چلا تھا۔ کیا کرتے ہو تم دونوں؟ انہوں نے ان کی حالت کو دیکھتے ہوئے پوچھا تھا، کیونکہ دونوں کے جسموں پر کپڑے تو تھے مگر جگہ جگہ پیبند لگے ہوئے تھے۔ کچھ نہیں سر، بس نوکری کی تلاش میں نکلے تھے تو یہ حادثہ پیش آ گیا، اب بس گھر جائیں گے، پھر کل سے دوبارہ نوکری کے تک و دو میں لگ جائیں گے۔ ذیشان نے مسکراتے ہوئے کہا تھا، جبکہ رانی خاموش تھی۔ میرے گھر کام کرو گے، اچھا تنخواہ دوں گا، ویسے بھی مجھے 2 لوگوں کی ضرورت تھی، تم دونوں کا پڑھائی کا خرچ بھی میں اٹھاؤں گا۔ انہوں نے جیسے آفر کی تھی۔ ذیشان اور رانی ایک دوسرے کو دیکھا تھا۔ کیا وہ حیران کیوں ہو رہے ہو؟ اگر یہ تم دونوں کی انسانیت کا نتیجہ ہے، باقی کام کا ہوگا۔ انہوں نے مسکراتے ہوئے ان دونوں کو حیران چہرے کو دیکھتے ہوئے کہا تھا، اچھا ٹھیک ہے، مجھے منظور ہے۔ ذیشان ایک لمحے کو سوچا، پھر ہاں کر دی۔ رانی نے اس کی بات سنتے ہی اسے کوہنی ماری تھی، مگر وہ نظر انداز کر گیا تھا۔ اچھا ٹھیک ہے، یہ میرا ایڈریس ہے، کل صبح 10 بجے آ جانا۔ اس آدمی نے اپنی جیب سے ایک کارڈ نکال کر ذیشان کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا تھا، جس سے وہ فوراً تھام گیا تھا۔ تھینک یو سر۔ ذیشان مسکراتے ہوئے ان کا شکریہ ادا کر گیا تھا، جس پر وہ مسکرا کر دونوں کو الوداع کہتے اپنے گھر کی جانب چل دیے تھے، جبکہ رانی ذیشان کو گھورتی رہ گئی تھی۔ وہ انجان بنا کارڈ کو دیکھنے میں مصروف تھا۔ آج بہت بڑا دن تھا۔ آج زری اور رمشا کا کمپٹیشن تھا، وہ کمپٹیشن جس کے لیے زری نے کتنے پاپڑ بیلے تھے۔ اب یہ بی کانفیڈنٹ، زری نے نروس ہو رہی تھی، رمشا کو کہا تھا۔ اس کی ہمت بڑھائی تھی، مگر دل ہی دل وہ بھی تھوڑی نروس تھی، کیونکہ اسٹیج کے سامنے عوام اچھی خاصی تعداد میں موجود تھی۔ ججز اپنی سیٹ پر آ چکے تھے، مقابلے میں کوئی 100 طالب علموں کو منتخب کیا گیا تھا، جن میں سے
किसी दो जोड़ों को जीतना था, क्योंकि 100 लोगों का दो 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 करके पैर बना दिया गया था और इनमें से कोई 2 ही पैर ने जीतना था। अब वो 2 पैर कौन थे, ये तो वक्त ही बताना था। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जैसा कि आप सब जानते हैं, आज एक बहुत अहम और दिलचस्प मुकाबले का इंतखाब किया गया है, जिसमें जजेस चंद सवालात करेंगे और जीतने वाले 2 पेयर्स को मिलेगा यूरोप जाने का गोल्डन चांस। और न सिर्फ यूरोप जाने का मौका मिलेगा, बल्कि वहाँ की सबसे खूबसूरत, कदीम और तारीख़ी अहमियत रखने वाली लाइब्रेरी वेटकैन लाइब्रेरी को देखने का, इसका मुआयना करने का और वहाँ की बुक्स पढ़ने का भी मौका मिलेगा। होस्ट अपनी होस्टिंग करना शुरू की थी। इसकी बातें सुन अवाम ने तालियां बजाई थी। तो बिना किसी ताख़ीर के चलते हैं मुकाबले की जानिब। तो अपने जजेस से रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये मुकाबला शुरू करें और मुकाबले में शिरकत करने वाले तालिब इल्मों से सवालात का सिलसिला शुरू करें। होस्ट ने मुस्कुराते हुए कहा था और एक बार फिर तालियों की गूंज पूरे हॉल में गूंजी थी। अस्सलाम वालेकुम। जजेस में से एक जज ने मुस्कुराते हुए सलाम किया था, जिसका जवाब सब ने दिया था। जी, तो मेरा पहला सवाल आप सबसे ये है कि इंसान गलती करता है, फिर माफ़ी मांग लेता है, लेकिन दोबारा फिर गलती कर बैठता है। ऐसा क्यों होता है और कैसे हम इंसान खुद को कोई भी गलती करने से रोक सकते हैं? जज ने मुस्कुराते हुए सवाल किया था, जबकि वो लोग हैरान थे। इन्हें लगा था कोई तारीख़ी सवाल पूछे जाएंगे, मगर ये सवाल तो इनकी सोच से बिल्कुल बरअक्स था। कुछ ने जवाब दिए थे, जिनमें से बाज़ के सही, बाज़ के गलत और बाज़ बच्चों के तो बिल्कुल ही अजीब तरह के जवाब थे। जब सब बोल चुके तो रमशा और ज़री ने कोहनी मारी थी, अब यह जवाब देना। ज़री ने से कहा था। इसने एक बार आंखें बंद की थी, खुद में एतमाद जमा किया था, फिर माइक उठाए बोलना शुरू हुआ। मैंने किस्सा दाऊद से सीखी है एक बात। अपने गुनाहों से तंग आकर जब मैंने कुरान उठाया तो चंद आयत का तर्जुमा पढ़ना शुरू कर दिया, बस एक आयत की तलाश में कि शायद मुझे कुरान में ये आयत नज़र आ जाए कि अल्लाह ताला फरमा रहे हो कि मेरे बंदे, मैंने तेरे गुनाहों को माफ़ कर दिया। चंद आयत पढ़ती रही, मगर ऐसा तो कुछ नहीं था क्योंकि क़िस्सा दाऊद का जिक्र था, मगर एक जगह आकर रुक गई। बार बार इस आयत को पढ़ती रही। अपने नफ्स की पैरवी मत करना, वरना तुझे तेरे रब की राह से बहका देगी, और जो रब की राह से बहकते हैं इनके लिए सख्त अजाब है। मुझे एक लम्हे के लिए लगा ये तो अल्लाह ताला मुझसे कह रहे कि मेरी बंदी, नफ्स के पीछे मत भागो। मैं बार बार ये आयत पढ़ती रही, फिर क़ससुल अंबिया उठाई और क़िस्सा दाऊद पढ़ना शुरू किया। हम सब जानते हैं न क़िस्सा दाऊद के बारे में। जब उनसे गलती सरजद हुई तो उन्होंने रो रो कर माफ़ी मांगी, फिर अल्लाह तबारक व तआला ने अपने फ़ज़ल से इन्हें मुआफ़ फरमा दिया। और तब इन आयत में इन्हीं नसीहत की गई थी। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से दुआ मांगी कि अल्लाह ताला इस गलती पे मेरे जिस्म पर कोई निशान बना दे, ताकि जब मैं देखूं मुझे याद आए और मैं इस गलती को दोबारा सरजद करने से बच जाऊं। बस यही, मैं रुक गई। मैं क्या करती? एक गुनाह करती हूँ, एक नमाज में माफ़ी मांगती हूँ, फिर दोबारा वो गुनाह ना करने का वादा करती हूँ। मगर क्या होता है कि जब इसी तरह के हालात दोबारा सामने आते तो हमसे वही गुनाह दोबारा हो जाता है। जब हज़रत दाऊद अपना हाथ देखते जिस पर गलती का निशान था तो वो रोते थे, माफ़ी मांगते थे, मगर हम भूल जाते हैं। इसलिए अपनी की गई गलती या गुनाह को याद रखना चाहिए, इन हालात को याद रखना चाहिए जिसमें वो गुनाह हुआ था, ताकि दोबारा जैसे ही महसूस हो कि इस तरह के हालात दोबारा पैदा हो रहे तो आप खुद को इस गुनाह से महफूज कर सके। गुनाहों का सिलसिला जारी ही रहना इंसान खता का पुतला है। असल बात तो शर्मिंदगी और तौबा की होती है, मगर हम इंसान अपने गुनाहों पर शर्मिंदा ही नहीं हो पाते। जिस दिन दिल से शर्मिंदा हो गए उस दिन के बाद से दोबारा गुनाह सरजद नहीं होगा। और याद रखें, तौबा कर ले, क्योंकि तौबा भी हर किसी को नसीब नहीं होती। इसने गैर मरे नुक्ते को देखते हुए सब बोल दिया था। होश में तो तब आई जब पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा था। वाह, अब यह ज़बरदस्त! ज़री ने इसके कान में सरगोशी की थी और वो मुस्कुराई थी। बहुत खूब। अब आते हैं दूसरे सवाल की तरफ। होस्ट ने इसके जवाब को सराहते हुए जजेस को दूसरा सवाल करने का कहा था, जिनका जवाब दूसरे पेयर्स ने दिया। तो यूं सवालों का सिलसिला चलता रहा। फिर एक जज ने सवाल किया, तो मेरा सवाल ये है कि उस्ताद अपने शागिर्द को क्यों मारता है? उन्होंने संजीदगी से पूछा था। अब इस सवाल को तो न जाने कितने जवाब निकल लेते, हर कोई अपने तौर पर जवाब दे रहा था। जब ज़री ने फ़ौरन माइक उठाया था। एक उस्ताद अपने शागिर्द को इसलिए मारता है कि वो दुनिया के फजूल कामों से दूर रहकर अपनी कामयाबी की सीढ़ी पर पाँव रख सके, क्योंकि माँ बाप के बाद एक बच्चे का दूसरा बाप उसका उस्ताद होता है। जिस तरह बाप और माँ दोनों मिलकर अपने बच्चे की परवरिश करते हैं, उस तरह उस्ताद भी एक वक्त में न जाने कितने बच्चों की बिल्कुल उसी तरह परवरिश कर रहा होता है जिस तरह वालिदैन अपने एक बच्चे की करते। इसी बात पर एक जगह पढ़ी हुई तहरीर दिमाग में आई है कि मेरा जवाब और वाज़ेह तौर पर आप सबकी समझ आएगा। हुआ यूँ था कि एक दिन टीचर ने अपने तालिब इल्म को बहुत मारा। इसने दिल में इन्हें जितनी गालियाँ दे सकता था दी, और इरादा किया जब ज़रा बड़ा हुआ तो इन्हें कत्ल कर दूंगा। आखिरी जवानी का जोश था,
जोश तो मारना था, इज़्ज़त का सवाल था, लेकिन वो अपने इस तालिब इल्म को ज़िंदगी में कामयाब होने का हर तरीका सिखा गए। एक दिन वही उस्ताद इस बच्चे को मिले, साइकिल पर थे, काफ़ी बुज़ुर्ग हो चुके थे, इनके पाँव शुगर की वजह से सूजे रहते थे, कभी-कभी बिना जूतों के साइकिल चलाते थे। अपनी इस तालिब इल्म को देखा तो देखते ही बोले, इब्राहिम। इसने जैसे अपना नाम सुना, फ़ौरन गाड़ी से भागकर उतरकर इनके करीब पहुंचा। वो बड़े खुश हुए थे। इसे देखकर एकदम हाथ जोड़कर कमज़ोर आवाज़ में बोले, यार मुझे माफ़ कर देना, तुझे बहुत मारा, पर इसलिए मारता था कि तुम कुछ बन जाओ, और आज तुम्हें किसी मकाम पर देखकर रो पड़ा हूँ। मेरा शागिर्द आज बड़ी गाड़ी में बैठा है। बेटा, तुम मेरी खुशी का अंदाज़ा नहीं कर सकते। वो ये कहकर रो पड़े थे। ये बात सुनते ही इस तालिब इल्म के सीने पर घूंसा लगा था। तड़प कर इसने इन्हें सीने से लगा लिया और सारा रोड ये मंजर देख रहा था। फिर इसने इनके पाँव चूमे। वो दोनों उस्ताद शागिर्द गले लग कर रोते रहे। अजब सी महक थी जो इनके सीने से आ रही थी। इस तालिब इल्म को वो इनकी छाती में सुकून महसूस हो रहा था, अब्दी सुकून। जिस किसी भी राह चलते बंदे को पता चला वो रो पड़ा था उस्ताद शागिर्द का प्यार देखकर। ये बात ये है कि आप अच्छे नंबर्स ना भी लें, अच्छे ग्रेड्स ना भी लें, सिर्फ अपने टीचर का अदब करें तो अजर टीचर नहीं खुदा देता है। मुझे ये मुलाकात और तहरीर कभी नहीं भूल सकती, क्योंकि मुझे तराशने वाले भी तो वही हैं, मेरे उस्ताद। मैं गुमनाम बेशक्ल पत्थर थी जिसे उन्होंने तराशा, और आज इनकी मेहनत का सिला ये है कि मैं आज इस कंपटीशन में बैठी जवाब दे रही हूँ। और इससे ज़्यादा खुशी मुझे इस बात की है कि मैंने आज अपने उस्ताद की तारीफ़ मजमए में की है, क्योंकि उस्ताद तो अपने शागिर्द की तारीफ़ करता रहता है, मगर बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो ऐसे मजमुओं में अपनी तमाम तर कामयाबियों का सहरा अपने माँ बाप के बाद अपने उस्ताद के सर बांधते हैं और इनकी तारीफ़ करते हैं। इसलिए जितना हो सके सिर्फ उस्ताद के एहतराम को तरजीह दें, और यही फ़क्त कामयाबी की सीढ़ी है। ज़री ने बहुत फ़ख्र से अपना जवाब दिया था। मजमुए में तालियों की गूंज बहुत ज़्यादा हो गई थी। जजेस ने भी इसके जवाब को सराहा था, और वाकई ज़री ने बिल्कुल ठीक जवाब दिया था। हम अपनी कामयाबी में इस कदर आगे बढ़ जाते हैं कि जब हमसे हमारी कामयाबी का राज पूछा जाता तो हम रस्मन माँ बाप का नाम लेकर कहते हैं कि ये सब हमारी मेहनत थी, जबकि माँ बाप के बाद सबसे ज़्यादा मेहनत उस्ताद की होती है। वो रूहानी बाप होता है। शागिर्दों का इनका दर्जा माँ बाप के बराबर होता है। हम बड़े होकर इन्हें बिल्कुल नज़रअंदाज कर देते, जो कि हमारी सबसे बड़ी गलती होती है। इसलिए हमें अपने असातिज़ा को हमेशा अपनी दुआओं में और अपनी कामयाबी के राज में ज़रूर रखना चाहिए। क्या है, ऐसे क्यों घूर रही हूँ? माना कि मैं बहुत खूबसूरत हूँ, इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम मुझे घूरोगी। मैं काला हो गया तुम या मुझे नज़र लग गई तो? इसके यूँ घूरने पर ज़ीशा ने चोट करते हुए कहा था, क्योंकि वो उसकी घूरी से ज़िच हो गया था। बस ज़्यादा मत हाँको। और क्या कहा? तुम खूबसूरत लड़के, तुम खूबसूरत हो। लड़के खूबसूरत नहीं, हैंडसम होते हो। तुम तो खूबसूरती की बात छोड़ ही दो, शक्ल देखिए अपनी, कद्दू जैसी है। इस पर ये बैंगन जैसा नाक, पकौड़े जैसे सड़े हुए गाल, ऊँट जैसा लंबा कद, और ये होठ। हाँ बोलो बोलो, क्या होठ? रानी को समझ नहीं आ रही थी कि वो आगे क्या कहे, तो रुक गई। बोलते बोलते जब ज़ीशान बड़ी दिलचस्पी से इसे मज़ीद बोलने पर उकसा रहा था, न जाने कि इसे अच्छा लगने लगा था इसका यूँ पटर पटर करना। कुछ नहीं, रानी ने फ़ौरन नज़रें झुकाए जवाब दिया था। नहीं, तुम कुछ कह रही थी मेरे होठों के बारे में। इसने हंसी ज़ब्त करते हुए शरारत से कहा था। कुछ नहीं बोल रही थी मैं। तुम ये बताओ, तुमने हामी क्यों भरी? पता है वो कोई और काम करते हुए कोई गलत काम, और वैसे भी आज के ज़माने में इतना कौन भला करता है हम जैसे लोगों का? रानी ने बात को टाला था, इसकी तवज्जो असली बात की तरफ करवाई थी। कुछ नहीं होता रानी, वो अच्छी इंसान है, शक्ल सूरत से भी और अखलाक व आदत के भी। तुमने महसूस नहीं किया क्या? इसने इसे समझाते हुए कहा था, जो जैसा दिखता है वो वैसा नहीं होता। लोग अपने असल चेहरे को हमेशा छुपाते हैं। मैंने पढ़ा है एक जगह कि एक मुसव्विर गिर था। इसने कहा था कि मैं 3 तरह की तस्वीर बनाऊंगा। एक तस्वीर जो आपके असल में खुद है, इसके मैं 25 रुपये लूँगा। एक तस्वीर जो आप सबको दिखाना चाहते हैं, इसके मैं 50 रुपये लूँगा। और तीसरी वो तस्वीर बनाऊँगा जिसमें मैं वो अक्स बनाऊँगा जो आप बनना चाहते हैं, मैं इसके 100 रुपये लूँगा। और जब वो मुसव्विर मरने लगा तो पता है इसने क्या कहा था? रानी कहते कहते रुकी थी। क्या कहा था? ज़ीशान जो दिलचस्पी से इसे सुन रहा था फ़ौरन बोला था, इस मुसव्विर ने मरते वक्त कहा था, लोगों ने हमेशा मुझसे वो तस्वीर बनाई है जैसा वो दूसरों को दिखाना चाहते थे। इसने इसे देखते हुए बताया था। तो इस बात का इस आदमी की बात से क्या ताल्लुक है रानी? ज़ीशान ने इसके बेतुके जवाब को सुनकर पूछा था। ताल्लुक है ज़ीशान, जब लोग ऐसी तस्वीरें बना सकते हैं जैसे वो दूसरों को दिखाना चाहते हैं, तो ये आदमी भी उन लोगों में शुमार हो सकता है ना। क्यों हमारी मदद करेगा, हमें तालीम मुहैया करेगा, जबकि इससे इसको कोई फ़ायदा नहीं होगा। और आजकल के दौर में लोग
वो काम नहीं करते जो इनको फ़ायदा ना पहुँचाए। अरे काम तो काम रह गया, यहाँ तो लोग बिना फ़ायदे के रिश्ते भी नहीं रखते, क्योंकि मतलब का वज़न बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए जैसे ही निकलता है लोग छोड़ देते हैं। रानी ने तलख़ी से कहा था, जबकि वो लोगों की बेहिसी देख चुकी थी। इसी बेहिसी ने तो इसे वक्त से पहले बड़ा कर दिया था। वो कैसे इतनी आसानी से इस आदमी के खुलूस पर एतमाद कर लेती। रानी, ये सब तुम्हारी गलत फहमी है। यार मैं मानता हूँ लोग ऐसे हैं आजकल, मगर पांचों उंगली एक जैसी तो नहीं होती है ना। हम कुछ लोगों की गई बेहिसी के नतीजे में सबको एक नज़र से तो नहीं देख सकते। जीशान इसे समझाते हुए कहा था, क्योंकि रानी समझदार सही मगर जीशान से ज़्यादा समझ बूझ नहीं रखती थी, क्योंकि औरत जितनी भी समझदार हो जाए मर्द से ज़्यादा समझदार नहीं हो सकती। मर्द को बाहर की दुनिया और दुनिया का औरत से ज़्यादा पता होता है, और जीशान को वो आदमी सही लगा था और उसकी ऑफ़र भी। चलो घर, मज़ीद कोई बहस नहीं चाहती। घर में भी बहुत काम है मुझे। रानी ने बात ख़त्म करते हुए कहा था, हाँ तुम जैसे डोनाल्ड ट्रंप लगी हो ना। जीशान ने शरारत से कहा था, हाँ मैं डोनाल्ड ट्रंप लगी हूँ, कम अज़ कम तुम्हारी तरह इमरान खान तो नहीं लगी जो वैली बैठ कर सबको तकती हूँ। काम चोर। रानी ने इसके घर में बैठ कर इसे घूरते रहने पर चोट की थी, जिसे सुनकर जीशान मुस्कुराया था। अच्छा चलो ना, छोड़े सियासत, हमारे बस का काम नहीं, हम नॉर्मल अवाम ही ठीक है। जीशान ने मुस्कुराते हुए बात को ख़त्म करना चाहा, क्योंकि इसकी बात इसके ही गले पड़ रही थी। हाँ, जब खुद पर बात आती है तो नॉर्मल अवाम ही बनते हैं सब। रानी ने फ़ौरन जवाब दिया था और घर की तरफ चल पड़ी थी, जबकि जीशान मुस्कुराते हुए इसके पीछे चल दिया था। और जिसने कभी किसी से ढंग से बात न की थी, बेतुकी बातें करने लगा था। कभी ना हंसने वाला संजीदा लड़का अब हंसने और मुस्कुराने लगा था, और ये सब रानी की वजह से था, मगर वो इस बात से अनजान थी। आज वो बहुत खुश थी, क्योंकि इसका ना सिर्फ पासपोर्ट बन चुका था बल्कि यूरोप जाने की टिकट भी बुक हो चुकी थी। अब बस अपनी तैयारी करनी थी, क्योंकि कल रात ही इसे अपनी मंजिल की जानिब कदम बढ़ाना था। कल रात 10 बजे इसकी फ़्लाइट थी। कहाँ जाने की तैयारी हो रही है? जब एरिया ने इसे सामान पैक करते हुए देखा तो पूछ बैठी थी, क्योंकि इसने किसी को नहीं बताया था कि वो यूरोप जाने वाली है, अपने ख्वाब को पूरा करने वाली है यूरोप। इसने मसरूफ़ अंदाज में इसे बताया था, जबकि वो सुनकर हैरान हुई थी। मुझे लगता है मैंने कुछ गलत सुन लिया, क्या तुम मुझे दोबारा बताओगी? जब वेरिया ने कान में उंगली डालकर साफ करते हुए कहा था, तुमने कुछ गलत नहीं सुना, मैं सच में यूरोप जा रही हूँ। महानूर ने इसे देखते हुए बताया, फिर दोबारा बैग पैक करने लगी थी। ये कैसे हो सकता है यार, तुम कैसे जा सकती हो? मतलब पैसे कहाँ से आए तुम्हारे पास? जवेरिया ने हैरानगी लिए पूछा था। ये खबर इसके लिए शॉकिंग ही तो थी। महानूर यूरोप जैसे बड़े मुल्क में जा रही थी, वो भी अपने दम पर, भला वो हैरान क्यों ना होती। मेरी कमेटियाँ निकल आई थी जितनी मैंने डाली थी, इसलिए मैं यूरोप जा रही हूँ, क्योंकि मैंने पैसे इसी पर खर्च किए हैं। तुम तो जानती हो ना मेरी कितनी बड़ी ख्वाहिश है कि यूरोप जाने की, वहाँ की लाइब्रेरी देखने की। अब मेरी वो ख्वाहिश पूरी हो रही है। महानूर खुश होते हुए से बताया, जबकि जवेरिया भी अपनी दोस्त की खुशी में खुश हुई थी। चलो भाई, अच्छी बात है, वहाँ जाकर मुझे भूल मत जाना। जवेरिया ने मुस्कुराते हुए कहा था, दोस्त दोस्त ही होते हैं, इन्हें कभी भुलाया नहीं जाता। महानूर ने मुस्कुराते हुए कहा था, चलो मैं भी तुम्हारी मदद करवा देती हूँ। जवेरिया ने बेड पर पड़े कपड़े उठाते हुए कहा था। दोनों ने मुस्कुराते हुए बातें करती पैकिंग करने लगी थी। कंपटीशन अपने उरूज पर था, हर तरफ तालियों की गूंज थी। रमशा और जरी के पैर के 4 पॉइंट्स हो चुके थे, जबकि बाकियों के कम थे। किसी के 3 तो किसी के 2 और किसी के 1 थे। ये तो नाज़रीन, ये हमारे मुकाबले का आखिरी सवाल होगा, जिसका जवाब देने पर वो पैर्स इस कंपटीशन को जीत सकेगा। होस्ट ने मुस्कुराते हुए अवाम और मुकाबले में शरीक तालिब इल्मों को कहा था, जी तो जजेस अपना आखिरी सवाल पूछे। होस्ट ने जजेस को मुखातिब किया था, जिस पर एक जज ने माइक थामा था। जी तो मेरा सवाल ये है कि आजकल के बच्चे और बड़ों को डिप्रेशन है, हर कोई डिप्रेशन का शिकार है। आखिर क्या वजह है? जब हमने काफ़ी तरक्की कर ली फिर भी ऐसा है, आखिर क्यों है? जज ने सवाल किया था, जबकि सब ने एक दूसरे को देखा था। फिर कुछ ने जवाब देने शुरू किए थे, लेकिन किसी का जवाब भी जजिस को मुतमईन नहीं कर सका। जब जरी ने दोबारा रमशा को कहानी मारी थी, अब ये बताएं ना, अपनी अकल का इस्तेमाल करें और जवाब दे। जरी ने रमशा की जानिब झुककर इसे कहा था। अच्छा। रमशा ने माइक पकड़े जरी से कहा था। फिर इसने कहना शुरू किया, बीते ज़माने की प्यारी बातें। घरों में खत आते थे, जो लोग पढ़ना नहीं जानते थे वो डाकिए से खत पढ़वाते थे। डकिया तो घर का एक फर्ज शुमार होता था। खत लिख भी देता, पढ़ भी लेता, और लस्सी पानी पी कर साइकिल पे ये जा वो जा। इम्तिहानात का नतीजा आना होता, नस्र मिनल्लाहि व फतहुन करीब पढ़ कर निकलते थे और खुशी खुशी पास वो करा जाते थे। ये वो दौर था जब लोग किसी की बात समझकर ओके नहीं ठीक है कहा करते थे। मौत वाले घर में सब महल्लेदार सच्चे दिल से रोते थे और खुशी वाले घर में हकीकी कह लगाते थे। हर हमसाया अपने घर से सालन की 1 प्लेट साथ वालों को भेजता था, उधर से भी प्लेट खाली नहीं आती थी। मीठे की 3 ही अकसाम थी, हलवा, जर्दा, चावल और खीर।
آئس کریم دکانوں سے نہیں لکڑی کی بنی ریڈیو سے ملتی تھی جو میوزک نہیں بجاتی تھی۔ گلی گلی میں سائیکل کے میکینک موجود تھے جہاں کوئی نہ کوئی محلے دار قمیض کا کونا منہ میں دبائے پمپ سے سائیکل میں ہوا بھرتا نظر آتا تھا۔ نیاز بڑھتی تھی تو سب سے پہلا حق بچوں کا ہوتا تھا۔ ہر دوسرے دن کسی نہ کسی گلی کے کونے سے آواز آ جاتی تھی، کڑیوں منڈیوں شے ونڈیندی لے جاؤ، اور آن کی آن بچوں کا جمع غفیر جمع ہو جاتا اور کئی آوازیں سنائی دیتی۔ میرے بھائی دا حصہ بھی دے دیو۔ دودھ کے پیکٹ اور دکانیں تو بہت بعد میں وجود میں۔ پہلے تو لوگ بہانے سے دودھ لینے جاتے تھے، گفتگو ہی گفتگو تھی، باتیں ہی باتیں تھی، وقت ہی وقت تھا۔ گلیوں میں چارپائی بچھی ہوئی ہے، محلے کے بابے حقے پی رہے ہیں اور پرانے بزرگوں کے واقعات بیان ہو رہے ہیں۔ جن گھروں میں ٹی وی آ چکا تھا انہوں نے اپنے دروازوں کے محلے کے بچوں کے لیے ہمیشہ کھلے رکھے۔ مٹی کا لیپ کی ہوئی چھت کے نیچے چلتا ہوا پنکھا سخت گرمی میں بھی ٹھنڈی ہوا دیتا تھا، لیکن پھر اچانک سب کچھ بدل گیا۔ ہم قدیم سے جدید ہو گئے۔ اب باورچی خانہ سیڑھیوں کے نیچے نہیں ہوتا، کھانا بیٹھ کر نہیں پکایا جاتا، دسترخوان شاید ہی کوئی استعمال کرتا ہو۔ منجن سے ٹوتھ پیسٹ تک کے سفر ہم نے ہر چیز سے بہتر کر لی، لیکن پتہ نہیں کیوں اس قدر سہولتوں کے باوجود ہمارے گھر میں ایک ایسا ڈبہ ضرور رکھنا پڑتا ہے جس میں ڈپریشن، سر درد، بلڈ پریشر اور نیند اور وٹامنز کی گولیاں ہر وقت موجود ہوں۔ یہ ہمارے والدین کا زمانہ تھا، پرسکون، ڈپریشن سے پاک۔ آج کل تو 10 سال کے بچے کو بھی ٹینشن ہے۔ جانتے ہیں کیوں؟ کیونکہ پرانا زمانہ اچھا تھا، لوگوں کے دلوں میں مخلصی تھی۔ آج کل کے دور کے لوگوں کی طرح دل میں نفرت لیے نہیں پھرتے تھے۔ بچے ہو یا بڑے سب ڈپریشن کا شکار ہے، کیونکہ آج کل موبائل فون نے باتیں مختصر کر دی۔ ہمیں ہم سے میلوں دور کے لوگوں کا پتہ ہوتا ہے، مگر ہمارے پاس رہنے والے ایک گھر، ایک چھت کے نیچے رہنے والوں کے بارے میں نہیں پتہ ہوتا۔ پھر ڈپریشن نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ جب لوگ ہمدرد بن کر ہمیں درد دیں گے تو ڈپریشن تو ہوگا نا۔ کبھی ماں کے پاس نہیں بیٹھتے، کیوں؟ کیونکہ وہ تو بوڑھے ہو گئے ہیں۔ اگر ہم بیٹھ بھی گئے تو وہی گھیسی پٹی باتیں کریں گے، بس یہی فالتو باتیں سوچ کر ہم ماں باپ کے پاس نہیں بیٹھتے۔ حالانکہ ماں باپ ہر مرض کی دوا ہوتے ہیں۔ ان کی باتیں 100 آنے سچ ہوتی، واحد ان کی صحبت ایسی ہوتی جو غلط کام نہیں کرواتی، ورنہ تو باہر کی دنیا کے لوگوں کی صحبتیں انسان کو اس طرح زمین میں گاڑتی ہیں کہ بندہ اٹھنے کے قابل نہیں رہتا۔ جب انسان ماں باپ کو چھوڑ کر، ان کی باتوں کو نظر انداز کر کے، پرانے زمانے کے لوگوں کی عادتوں کو فراموش کر کے جدید لوگوں کی سوچ کو اپنائے گا تو ڈپریشن کا ہی شکار ہوگا۔ پھر چاہے وہ بچہ ہو یا بڑا، کیا فرق پڑتا ہے؟ آخر دماغ، سوچ اور عادتیں سب میں یکساں ہوتی ہیں۔ جو چیزوں کو جلدی اپنے اندر اتار کر ان کا لبادہ اوڑھ لیتے ہیں۔ رمشا تو بول کر خاموش ہو گئی تھی، مگر سامنے بیٹھی آڈینس کے ساتھ جج نے بھی کھڑے ہو کر رمشا کے لیے تالیاں بجائی تھی، کیونکہ اس کا جواب نہ صرف سب کو مطمئن کر دینے والا تھا بلکہ حقیقت کا عکس لیے ہوئے تھا۔ اس نے پرانے زمانے کو اس خوبصورتی سے پیش کیا تھا کہ سب داد دیے بنا نہیں رہ سکے تھے۔ تو پھر رزلٹ کی اناؤنسمنٹ کی جائے، ہوسٹ نے مسکراتے ہوئے ججز سے کہا تھا، اور ججز نے اپنا بنایا گیا رزلٹ ہوسٹ کے حوالے کیا تھا۔ تو ناظرین اور حاضرین، مقابلے کا رزلٹ آ چکا ہے اور مقابلے میں جیتنے والے پیر موجود طالب علموں کا نام ہے۔ ہوسٹ کہہ کر خاموش ہو گیا تھا۔ آخر کا سسپنس بھی تو بڑھانا تھا، جب کس کی خاموشی نے عوام کو تڑپا دیا تھا۔ تو جیتنے والوں کے نام میں جنہوں نے پہلی پوزیشن حاصل کی ہے وہ ہے زرینہ اور رمشا۔ ہوسٹ نے خوشی سے پرجوش انداز میں ان کا نام پکارا تھا اور آڈینس میں ہوٹنگ اور تالیوں کی آواز گونجی تھی۔ سب کا دل جیت لیا تھا دونوں بہنوں نے۔ ان کے علاوہ ایک اور پیر جیتا تھا جسے لوگوں نے سراہا تھا، مگر جہاں زری اور رمشا تھی وہاں بھلا کون ہوتا؟ ابھی ہم جیت گئے، یاہو! زری نے خوش ہوتے ہوئے رمشا کے گلے لگ کر کہا تھا۔ وہی رمشا بھی خوش تھی، کیونکہ پہلی بار اس نے اپنے ڈر پر جیت حاصل کی تھی۔ ہارنے کا ڈر، ڈپریشن کا ڈر۔ آج اس نے اپنے سارے ڈروں پہ جیت حاصل کی تھی۔ اس کی خوشی دیکھنے کے لائق تھی۔ سچ کہتے ہیں، جب انسان ارادہ کر لے تو دنیا کی کوئی بھی طاقت اس کی منزل کو پانے سے نہیں روک سکتی، کیونکہ انسان کا ارادہ اس کی نیت سے ہی اسے جتواتی ہے۔ انسان کو خود پر، اپنی صلاحیتوں پر بھروسہ اور یقین ہونا چاہیے، پھر وہ ہر چیز کو حاصل کر سکتا ہے۔ آج کے دور کی یہ نت نئی ایجادات انسان کے پختہ ارادے اور اس کے بھروسے کی ہی مرہون منت ہے، جو اسے خود پر تھا۔ اسی ارادے اور یقین نے مسلمانوں کو آزادی دلوائی، اور یہی ارادہ اور یقین جنت بھی دلواتا ہے۔ بس خود پر، اپنی صلاحیتوں پر، اپنے مالک اور اس خدا پر یقین اور بھروسہ ہونا چاہیے جس نے ہمیں بنایا، اس جہان کو بنایا، اور سب سے بڑھ کر ہمیں اشرف المخلوقات بنایا، ہمیں عقل سے نوازا، جس استعمال کر کے اور اپنے ماں باپ کی عزت کرتے ہوئے ہم اس مقام کو حاصل کر سکتے جو ہمارے وہم گمان میں بھی نہیں ہوگا۔ اسی بات پر ایک بار پڑھی ہوئی ایک تحریر یاد آئی، جو بھلے حقیقت نہ رکھتی ہو مگر سبق ضرور رکھتی ہے۔ پرانے زمانے کی بات تھی۔ پرانے زمانے میں
ज़माने में तो लोगों के कद इतने बड़े हुआ करते थे कि इन्हें देखते हुए भले आज के दौर के लोगों की गर्दनें टूट जाए। तब एक आदमी था जिसके पास घोड़ा था। वो घोड़े की बनाई गई बाल्टी में घास डाले इसके पट्टे को घोड़े की गर्दन में डाल रहा था, जहाँ से वो घोड़ा उस घास को खा रहा था। तब वह आज के दौर का एक आदमी आ गया। इसके साथ एक बुजुर्ग आदमी भी थे। उस दौर के आदमी ने जब अपने सामने आज के दौर के आदमी को देखा तो बहुत छोटा लग रहा था। इसके सामने वो कह कहा लगाकर हंस पड़ा। जब बुजुर्ग ने इसकी हंसने की वजह पूछी तो कहने लगा, ये क्या कर लेंगे, जबकि इनके पास ना तो हमारे जैसा कद है ना ही हमारे जैसी ताकत। इस आदमी ने हंसते हुए कहा था, ये भले कद में छोटे हैं मगर बहुत बड़े करेंगे। इस बुजुर्ग ने इसे बताया था, अच्छा चलो फिर इसे कहो कि घोड़े को एक घास खिलाकर दिखाए, इसके गले में बाल्टी डालकर दिखाए तो मानूंगा मैं इसे। इस आदमी ने वही बाल्टी जो उसके घोड़े की गर्दन में डाली थी इसे उठाकर नीचे रखा। चूंकि बाल्टी बहुत भारी थी तो इसे उठा पाना आज के दौर के आदमी के लिए बहुत मुश्किल काम था, मगर इसके पास दिमाग था। इसने अपनी अकल के घोड़े दौड़ाए और इससे एक ख्याल आया कि चूंकि घोड़ा गले में लटकती बाल्टी से घास खाने का आदी था तो इसे नीचे पड़ी घास नहीं दिखी। इस आदमी ने क्या किया, घास का कुछ हिस्सा उठाया और घोड़े के मुंह के आगे लहराने लगा। जब घोड़े ने घास खानी शुरू की तो वो इसे नीचे जमीन की जानिब ले जाने लगा। फिर इसका मुंह घास की बाल्टी की जानिब कर दिया। जैसे ही घोड़े ने बाल्टी मुंह में डाला घास खाने के लिए तो आज के दौर के आदमी ने फौरन बाल्टी का पट्टा उस घोड़े के गले में डाल दिया। और जब घोड़े ने मुंह उठाया तो बाल्टी बिल्कुल वैसे ही इसके गले में लटकने लगी थी जैसे बाल्टी उसके गले में डाली गई हो। और घोड़ा घास खाने लगा था और उस दौर के आदमी का मुंह खोले का खुला रह गया था। देखा तुम लोग ताकत से काम करते हो और कद में बड़े हो, जबकि आने वाले दौर के लोग भले कद में छोटे होंगे मगर अकल से वो काम कर जाएंगे जो तुम लोग ताकत से भी नहीं कर सकते। बुजुर्ग ने मुस्कुराते हुए कहा था। तो इस सारी तहरीर का जो निचोड़ है वो ये है कि इंसान अपनी अकल को इस्तेमाल करके बहुत कुछ कर सकता है। आज इसी अकल को इस्तेमाल करके वो चांद तक पहुंच गया है। और तो जब हम अपनी अकल को इस कदर इस्तेमाल कर सकते तो हमें अपनी अकल के मियार को बढ़ाते हुए अपने इर्द गिर्द के लोगों के बारे में भी सोचना चाहिए, इनकी मदद करनी चाहिए, बेघर लोगों की मदद करनी चाहिए। इतनी अकल तो हम इस काम के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं ना। तो फिर हम अपने अशरफुल मखलूक़ात होने का सबूत देते हुए उस खुदा की बनाई गई मखलूक को अपनी अकल को इस्तेमाल करते हुए मदद करनी चाहिए। वो चारों अभी आगे बढ़े ही थे कि अचानक यकायक वहाँ एक तेज़ तूफान आ गया था। हर चीज़ तहस नहस हो रही थी। उफ, अब ये क्या आ गया है, हम कैसे निकलेंगे यहाँ से अब? बस अब हमें किताब मिलने वाली है, फहद ने इस तूफ़ान से बचते हुए पूछा था। ये तूफ़ान आया ही इसलिए है कि हम इस किताब तक ना पहुँच सके, मगर मुझे ये तूफ़ान कुछ और ही पैगाम दे रहा है। कही किताब। दाइम ने अतराफ़ का जायज़ा लेते हुए अपनी बात अधूरी छोड़ गया, क्योंकि इसमें ये खूबी थी कि वो खुशी हो या गम, फिर कोई ऐसी बात जो किसी होने या ना होने का पैगाम देती हो वो उसे महसूस कर सकता था। और यहाँ भी इसे किसी अनहोनी का एहसास हो रहा था, जैसे इनकी मेहनत ज़ाय हो गई। किताब क्या? यासीन ने फ़ौरन परेशानी से पूछा था। यहाँ से निकलने की कोशिश करो, आगे जाकर सारी बात क्लियर हो जाएगी। दाइम ने इन्हें हुक्म लहजे में कहा था, क्योंकि वो जानता था इसने इनको अपना अंदेशा बताया तो पता नहीं क्या करेंगे वो, इसलिए यहाँ से निकलना ही पहला काम इसे लगा था। सब बहुत मुश्किल से अपनी जादुई ताकतों का इस्तेमाल करते हुए तूफ़ान से निकले थे। शुक्र है बला टली। आतिफ ने तूफ़ान से निकलते ही शुक्र अदा किया था। तूफ़ान से तो निकल गए मगर सामने देखो, फहद ने परेशानी से सबको देखते हुए सामने जानिब तवज्जो दिलाते हुए कहा। जहाँ एक गड्ढा बना हुआ था वो गड्ढा ऐन उसी जगह था जहाँ वो किताब थी, मतलब किताब कोई और ले गया है। आतिफ ने सदमे से कहा। तो इसकी बातें सुनकर यासिर और फहद भी सदमे में चले गए, जबकि दाइम वो तो सूरत हाल समझने में मसरूफ़ था। हमारी इतनी दूर आना, अपनी जान को ख़तरे में डालना, ये सब फजूल गया, मतलब हम धोखे में थे। यहाँ से तो किताब कोई और चुरा ले गया है, फहद ने दुख से कहा था, क्योंकि एक तो वो इतनी मेहनत और जान को ख़तरे में डालकर इतना बड़ा रिस्क लेकर यहाँ तक आए थे और बदले में क्या मिला? कुछ नहीं। अब भी हमारी मेहनत ज़ाय नहीं हुई। हम चाहे तो अब भी किताब हासिल कर सकते हैं। वो किताब फरहान की है, इसका हक है इस किताब पर, वो किताब इसके पास ही जाएगी। दाइम ने कुछ सोचते हुए यहाँ वहाँ नज़रें दौड़ाई। अपने साथियों से कहा जो यहाँ का मंजर देखकर दुख में मुब्तला हो चुके थे, कैसे किताब मिलेगी हमें? यहाँ सिर्फ फ़ौरन से बोला था, ये देखो गड्ढा खोदा गया, मतलब खोदने वाले के हाथ के निशान यहाँ मिट्टी पे मौजूद होंगे। फहद के पास वो ताकत है जो किसी के हाथ के निशान से उसका पूरा बायोडाटा निकाल कर दे सके।
दाइम ने फहद की ताकत के बारे में बताते हुए कहा था, अरे हाँ, ये तो मैं भूल ही गया था। फहद ने इसकी बात सुनते ही फौरन जवाब दिया था, जिस पर बाकी दोनों ने सुख का सांस लिया था। चलो, मेहनत ज़ाय नहीं हुई थी। फहद, चलो काम पर लगो, हमारे पास वक्त कम है। दाइम ने इसे देखते हुए कहा तो वो सर को हिलाता घड़े के बिल्कुल सामने आकर खड़ा हो गया और कुछ पढ़ते हुए हाथों को हवा में लहराने लगा था। इसके हाथों को हवा में लहराते ही इस घड़े से मिट्टी के रेजे हवा में उड़ने लगे थे और देखते ही देखते हवा में इस मिट्टी का एक तूफान सा आने लगा, जिसके कुछ पल बाद ही वो तूफान थम गया था, मगर थमने के साथ वो मिट्टी से इस इंसान का चेहरा हवा में बना गया जो फरहान की किताब इस जगह से लेकर गया था। ये आदमी लेकर गया है किताब। यासीन इस तस्वीर को देखते ही फौरन कहा था, हाँ, ये आदमी लेकर गया है इस किताब को और मैं जानता हूँ इस आदमी को। मेरा ध्यान नहीं गया था इस तरफ, मैं कैसे भूल सकता हूँ इसे। ये कैसा रह गया मुझसे। दाइम इस तस्वीर को देखते ही बोला था, तुम जानते हो इस आदमी को, मगर कैसे। फहद ने दाइम की बात सुनकर हैरत से देखते हुए पूछा था, ये आदमी अल्बर्ट है। इस इंसान ने आज से पहले फरहान के ज़माने भी इस किताब को चुराने की कोशिश की थी, क्योंकि इसे फरहान की ज़िंदगी में पढ़ने का शौक़ था। वो फरहान को जानना चाहता था, मगर तब वो कामयाब ना हो सका था। लेकिन इसने वादा किया था, फिर कभी ज़िंदगी ने इसे मौका दिया तो वो फरहान को पढ़ेगा ज़रूर। और अब यही हुआ, हमें जल्द अज जल्द इसे ढूंढना होगा और यही कहीं रहता होगा। यासिर, तुम अपनी ताकत से इसके घर का पता लगाओ। दाइम अल्बर्ट के बारे में बताते हुए यासिर से कहा था, जिस पर यासिर ने हामी गर्दन हिलाते हुए अपनी ताकत इस्तेमाल करना शुरू किया। बहुत बहुत मुबारक हो आप दोनों, ये कंपटीशन जीत गई और आपको मिले हैं यूरोप जाने के टिकट्स और वहाँ की सबसे कदीम और खूबसूरत लाइब्रेरी, वेटिकन लाइब्रेरी देखने का मौका। होस्ट रमशा और जरीना को देखते हुए खुशी से कहा था। इन दोनों के जवाबात ने सबको बहुत मुतासिर किया था। सब दिल से बहुत खुश थे। वो दोनों जीत गई है, बहुत शुक्रिया। रमशा ने होस्ट की मुबारकबाद को कबूल करते हुए इसका शुक्रिया अदा किया था और फिर जजेस ने इन्हें टिकट्स दिए जो कल रात की 10 बजे की थी और साथ ही इन्हें अपनी तरफ से कुछ तोहफे दिए थे, क्योंकि सवालात के जवाबात जिस अंदाज में दोनों बहनों ने दिए थे वो वाकई काबिल तारीफ थे। वो दोनों खुशी खुशी घर वापस लौटी थी, मगर जैसे घर का दरवाजे पर पहुंची फ़ौरन मुँह लटका लिया था और घर के दरवाजे की बेल बजाई थी। कुछ ही लम्हों बाद सवारा बेगम ने दरवाज़ा खोला था। वो घर में दाखिल हुई थी। आ गई तुम दोनों, कब से इंतज़ार कर रही थी मैं तुम दोनों का। इनके घर में आती ही सवारा बेगम ने इन्हें देखते हुए जो मुंह पर दुनिया जहान का दुख समेटे खड़ी थी, जैसे न जाने कितना बड़ा नुकसान कराई हो। क्या हुआ है, मुँह क्यों लटका हुआ है तुम दोनों का। क्या जीत मुमकिन नहीं बन सकी तुम दोनों की। अगर ऐसी बात है तो कोई बात नहीं, खैर हार जीत तो चलती रहती है। तुम दोनों दिल छोटा ना करो। और हम जीत गए हैं अम्मी। अभी सवारा बेगम इन दोनों को समझा ही रही थी कि दोनों ने एक ज़बान होकर इन्हें खुशी की खबर सुनाई थी, जिसे सुन वो बिल्कुल हैरत और खुशी के मिले जुले तासुरात लिए इन्हें देखने लगी। क्या वाकई उन्होंने जैसे तायद चाही थी। जी अम्मी, बिल्कुल आपकी। रमशा ने अपने डर पर जीत हासिल की है। आपकी जरी ने अपने हौसले और खुद एतमादी पर जीत हासिल की है। आज हम दोनों बहनों ने अपनी ज़िंदगी में अपनी पहली कामयाबी की जानिब कदम बढ़ाए हैं। हम जीत गए अम्मी, हम जीत गए। जरी ने खुशी से सवारा बेगम के गले लगते ही इन्हें बताया था। इनका तो खुशी के मारे बुरा हाल हो रहा था। औलाद की खुशी और जीत माँ बाप के लिए वाकई बहुत ज़्यादा खुशी की बात होती है। अल्लाह तुम दोनों को कामयाब करे, आमीन। सवारा बेगम दिल से दुआ दी थी, जिस पर तीनों ने आमीन कहा था। आज काफ़ी अरसे बाद इनके घर ऐसी खुशी आई थी जिस पर सब दिल जान से खुश थे। सच कहते हैं, अगर इंसान कुछ करने की ठान ले तो किस्मत में कामयाबी इस इंसान का मुकद्दर बन जाती है। बस इंसान में खुद एतमादी और अपनी ज़ात पर भरोसा होना चाहिए, क्योंकि खुद पर भरोसा तो अवलीन शर्त है कामयाबी की। जिस इंसान को खुद पर भरोसा नहीं होगा वो कैसे कामयाब हो सकता है। जरी की खुद एतमादी और अपनी ज़ात पे भरोसे से इसे आज जितवाया था। न सिर्फ खुद जीत को अपना मुकद्दर बनाया, बल्कि अपनी बहन के अंदर भी खुद एतमादी पैदा करके इसे भी जितवाया था। चलो अब मुँह हाथ धो लो तुम दोनों, मैं खाना लगाती हूँ। तुम दोनों की पसंद की खीर भी बनाई है मैंने। मुझे पता था अल्लाह मेरे बच्चों को ज़रूर कामयाब करेगा, इसलिए मैंने पहले ही तैयार कर ली थी। सवारा बेगम ने मुस्कुराते हुए दोनों को गले से लगाया था। दिल खुश कर दिया मियाँ, आपने तो आज
अपनी पसंदीदा खीर का सुन रमशा ने खुश होते हुए कहा था, अच्छा अब चलो, वरना मैं जा रही हूँ फ्रेश होने, फिर ना कहना मेरा हिस्सा भी खा लिया तुमने। जरीन इसे वही खड़ा देख और कमरे की जानिब चल दी, क्योंकि अब इसे मज़ीद इंतज़ार करना मुश्किल हो रहा था। इसका बस नहीं चल रहा था कि अभी ही वो फ्री से बाउल निकाले और खीर खाने बैठ जाए, मगर कुछ तकाज़े थे जिन्हें पूरा करना था। पहले मुँह हाथ धोना था, फिर अदब का मुजाहरा करते हुए खीर खानी थी। अरे आ रही हूँ ना, रमशा इसे जाते देख फ़ौरन बोली थी। अब भला वो अपनी खीर ऐसे ही थोड़ी ना इसे खाने के लिए दे सकती थी। बहन की मोहब्बत अपनी जगह, खीर की मोहब्बत अपनी जगह थी। आज वो इसके घर के सामने था, जिसका पता ज़ीशान के हाथ में था। ज़ीशान, एक बार फिर सोच लो कि हम सही कर रहे हैं, रानी ने इसे देखते हुए कहा था, क्योंकि इस आदमी के खुलूस पर शक था। इस जालिम दुनिया में कोई किसी का इतना ख्याल कर सकता है? ये बात इसके नज़दीक हज़म करने में मुश्किल हो रही थी। वो छोटी उम्र में ले कुछ छोटी उम्र में क्या कुछ सह चुकी थी, तभी इसको लोगों पर यकीन करने में बहुत मुश्किल पेश आती थी। रानी, तुम फिक्र नहीं करो यार, सब अच्छा होगा, अल्लाह हमारी मदद करेगा। हम अल्लाह के सहारे चलते हैं, वो हमारी रहनुमाई फरमाएंगे। ज़ीशान ने परेशान सी खड़ी रानी पर नज़र डाले इससे कहा था, क्योंकि बेशक एक वही ज़ात है जिस पर हम भरोसा करके कुछ भी कर सकते हैं। अच्छा तुम इतना बोल रहे हो तो चलो, रानी इसकी बात सुनते ही कहा, और दोनों घर में दाखिल हुए थे। किससे मिलना है आप दोनों ने? घर के दरवाजे पर मौजूद चौकीदार ने इन दोनों से पूछा था। जी हमें बड़े साहब से मिलना है, ज़ीशान ने चौकीदार को देखते हुए बताया था। तुम यहाँ रुको, मैं पूछ के आता हूँ, इस चौकीदार ने इन्हें देखते हुए कहा था और घर में चला गया था। साहब जी बाहर एक लड़का और एक लड़की आई है, कह रहे हैं आपसे मिलना है। चौकीदार ने जब हॉल में दिलावर खान को बैठा देखा तो इसके पास आते ही फर्माबरदारी से बताने लगा था, अच्छा वो लोग आ गए, ले आओ इन्हें अंदर। दिलावर खान को जैसे ही रानी और ज़ीशान का ख्याल आया था, उन्होंने दोनों को अंदर लाने का हुक्म जारी किया था, जिस पर चौकीदार सर को हिलाता घर के बाहर आ गया। इन दोनों को साथ लेकर आया था। अस्सलाम वालेकुम। ज़ीशान ने दिलावर खान के पास आते ही अदब से सलाम पेश किया था इन्हें, जिस पर वो मुस्कुराए थे। वालेकुम अस्सलाम। उन्होंने मुस्कुराते हुए सलाम का जवाब दिया था। आओ बैठो तुम दोनों यहाँ। दिलावर खान ने दोनों को खड़ा देख इन्हें बैठने की पेशकश की थी। नहीं, हम यही ठीक है, आप बताएं हमें क्या करना होगा? रानी ने पहली फुर्सत में इनकी पेशकश को रद्द करते हुए कहा था, जिस पर ज़ीशान ने इसे घूरी से नवाजा था। तभी दिलावर खान को एक कॉल आ गई थी और वो उस तरफ मुतवज्जह हुए थे। रानी, खुदा के लिए यहाँ अपनी ज़बान और अकल की जौहर नहीं दिखाओ यार, मेरे सामने दिखाती होना काफ़ी है। यहाँ खामोश रहो, जैसे मैं घर में तुम्हारी सुनता हूँ ना, चुप करके यहाँ प्लीज़ मेरी सुन लो। आई नो लड़कियों के लिए ये काम थोड़ा नहीं बल्कि बहुत मुश्किल होता है, मगर ट्राई कर लो कुछ घंटों के लिए। ज़ीशान के इसके कहने पर इसकी जानिब थोड़ा झुके हौले से मिन्नत भरे अंदाज में कहा था, जिस पर एक घूरी से रानी ने अब ज़ीशान को नवाजा था और अपना पाँव इसके पाँव पर जोर से मारा था। आह, इसकी बेसाख्ता चीख निकली थी। क्या हुआ? दिलावर खान जो मोबाइल पर आने वाली कॉल से अभी फारिग ही हुए थे, इसके चीखने पर फ़ौरन बोले थे, कुछ नहीं सर, बस किसी जहरीली चीज़ ने काट लिया, मेरा मतलब चूंटी थी। ज़ीशान ने रानी को घूरते हुए दिलावर खान को बताया था। रानी तो बिल्कुल ऐसे खड़ी थी जैसे कुछ हुआ ही नहीं। आप काम बता दें हमें, हम वो कर लेंगे। ज़ीशान ने काम की बात पर आते हुए कहा था। हाँ, काम तो मैं बता देता हूँ, पहले तुम दोनों मुझे अपना नाम बताओ। दिलावर खान ने इन्हें देखते हुए कहा था। जी मेरा नाम ज़ीशान है और ये मेरी कज़न है, इसका नाम रानिया है, प्यार से हम इसे रानी कहते हैं, आप कोई भी नाम से पुकार सकते हैं। ज़ीशान ने दिलावर खान को देखते हुए इन्हें बताया था कि जबकि कज़न का सुन रानी ने चौंक कर इसे देखा था। अच्छा ठीक है, तो रानी बेटा तुम्हारा काम बस इतना है कि तुम मेरी बेटी के साथ रहोगे, इसके साथ खेलना, बातें करना और इसका ख्याल रखना। ज़ीशान, तुम्हारा काम बस इन दोनों का ख्याल रखना, मतलब तुम इनके साथ ही रहोगे, पल पल की खबर मैं तुमसे लूँगा। बहुत ज़िम्मेदार लड़के हो, इसलिए ये काम तुम्हें दे रहा हूँ, क्योंकि मुझे मेरी बेटी के लिए दो ऐसे ही लोगों की ज़रूरत थी जिनमें इंसानियत हो, जिम्मेदारी का पता हो उन्हें। दिलावर खान ने इन्हें काम का बताया, जिन पर दोनों हैरान हुए थे, क्योंकि इनके तो वहम गुमान में भी नहीं था कि इन्हें ये काम करने को मिलेगा। इन दोनों की हैरानगी से एक दूसरे को फिर दिलावर खान को देखा था। तुम दोनों का स्कूल का दाखिला मैं कल करवा दूंगा, तुम लोग पहले स्कूल लेना, फिर मेरी बेटी के साथ टाइम स्पेंड करना। वो आज हॉस्पिटल गई भी है ट्रीटमेंट के लिए, इसलिए मैं नहीं मिलवा सकता, कल तुम्हारी मुलाकात करवा दूंगा मैं। इससे दिलावर खान दोनों को देखते हुए कहा था। हॉस्पिटल क्यों, क्या हुआ है, सब ठीक तो है ना? रानी ने जैसे हॉस्पिटल का नाम सुना था फ़ौरन परेशानी से गोया हुई। हाँ, वो हर हफ्ते जाती है ट्रीटमेंट के लिए, तुम लोग कल मिल लेना उससे। अभी के लिए तुम लोग जाना चाहते हो तो जा सकते हो, वरना घर देख लो, मुझे जाना होगा, अभी ज़रूरी काम है मुझे। उन्होंने इन्हें देखते हुए कहा था। जी हम चलते हैं, कल आ जाएंगे और
ہم اور گھر بھی کل ہی دیکھ لیں گے، ذیشان مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ جیسے تم دونوں کی مرضی، چلو اپنا خیال رکھنا، اللہ حافظ، دلاور خان مسکراتے ہوئے کہا اور گھر سے باہر نکل گئے تھے۔ ان کے پیچھے رانی اور ذیشان بھی گھر سے باہر نکلے تھے۔ ذیشان تمہیں حیرت نہیں ہوئی کام کا سن کر؟ مطلب ہم دونوں ایک لڑکی کے ساتھ رہنا ہوگا بس؟ رانی نے سڑک پر چلتے ہوئے اپنی حیرانگی اسے بتائی تھی۔ ہاں، حیران تو ہوا تھا، مگر حقیقت ابھی کھلنا باقی ہے۔ ابھی ہم نے اس لڑکی کو بھی نہیں دیکھا۔ وہ کیسی ہے لڑکی؟ وہ کیسی ہے؟ لڑکی کو دیکھ کر پتہ چلے گا وہ کیسی ہے اور ہمیں اس کے ساتھ کیسے رہنا ہے۔ پتہ نہیں کیسی دکھتی ہوگی، ذیشان نے اسے کہا تھا، مگر آخری بات پر وہ شرارت سے بول گیا تھا جو رانی کو تل ملا گئی تھی۔ تمہیں بڑا شوق ہو رہا ہے اس لڑکی کو دیکھنے کا؟ ہاں، رانی نے سڑک پر رکتے ہی اسے دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ ارے تم رک کیوں گئی ہو یار؟ ذیشان نے اس کی بات کو اگنور کیے اس کی سڑک پر رکنے پر کہا تھا۔ میری مرضی، میں رکوں، بیٹھوں یا لیٹوں یا ناچوں، یہ سڑک کسی کے باپ کی نہیں ہے۔ تم مجھے میرے سوال کا جواب دو، تمہیں کیا جلدی ہو رہی ہے اس لڑکی کو دیکھنے کی؟ رانی نے لڑاکا عورتوں کی طرح کمر پہ ہاتھ ٹکا اسے گھورتے ہوئے استفسار کیا تھا، جبکہ ذیشان اس کی جالسی کو دیکھ دل سے مسکرایا تھا۔ تمہیں کیا میں دیکھوں یا نہیں؟ میری آنکھیں، میری مرضی، ذیشان بھی مزید اسے چھیڑتے ہوئے لاپرواہی سے کہا تھا، جو رانی کو اور غصہ دلا گئی تھی۔ تمہاری مرضی اور آنکھوں کی تو ایسی کی تیسی۔ رانی نے غصے سے لال سرخ ہوتے ہوئے ذیشان کو گھورتے ہوئے اسے یہ سب کیوں برا لگ رہا تھا، اسے خود اس بات کا علم نہیں تھا۔ تم جل رہی ہو رانی؟ ذیشان اس کی لال سرخ ہو رہی ناک کو اپنی شہادت کی انگلی سے چھیڑتے ہوئے کہا تھا، جس پر رانی جھینپی تھی۔ میں کیوں جلوں گی بھلا؟ رانی کو جیسے ہی اپنی حماقت کا احساس ہوا، وہ ہکلاتے ہوئے کہنے لگی، تو یہ سب کیا تھا پھر؟ ذیشان مسکراتے ہوئے پوچھا تھا۔ کچھ نہیں، تم میرے ساتھ رہتے ہو تو یوں لڑکیوں کی بات کرو گے تو مجھے تو غصہ نہیں آئے گا؟ تو نہیں آئے گا کیا؟ کل کو لوگ کیا کہیں گے؟ رانی کسی چھچورے لڑکے کے ساتھ رہتی ہے؟ اس نے اپنے بوکھلاہٹ پر قابو پاتے ہی فوراً اسے دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ ہیں؟ یہ کیا تھا؟ تم اپنی جیلسی کو چھپانے کے لیے مجھے چھچورا کہہ رہی ہو؟ ذیشان نے اس کی بات سنتے ہی صدمے سے کہا تھا۔ ہاں، کیونکہ حرکتیں ہی ایسی ہیں تمہاری۔ اب گھر چلو، بس فالتو کی باتیں کرنے کا موقع چاہیے ہوتا ہے تمہیں، ناکارہ فضول نہ ہو تو۔ رانی نے فوراً اسے جان چھڑاتی سڑک پہ چلنے لگی تھی۔ دیکھنا ایک دن تم مجھے یعنی اس ناکارہ اور فضول انسان کو یاد کرو گی۔ ذیشان نے اس کے ساتھ قدم سے قدم ملاتے ہوئے اسے تنبیہ کیا تھا۔ دیکھیں گے، رانی نے اس کی بات کا مذاق کا رنگ دیتے ہوئے مسکرا کر کہا تھا۔ دونوں گھر کی جانب گامزن ہوئے تھے۔ آب مسئلہ ہے نہ تاب مسئلہ ہے، میری آنکھوں کے سبھی خواب مسئلہ ہے، کوئی نہیں ڈالتا نیکی دریا میں اب، دور حاضر میں جدید ثواب مسئلہ ہے، زخموں پہ نمک کا کام کرتے ہیں جناب، پرانی کتابوں کے تازہ گلاب مسئلہ ہے، کچھ بھی کہو تم کے سہولت جو ہے تمہیں، ہمارے لیے تو اجداد کے سکھائے آداب مسئلہ ہے، بہتر تو یہی ہے کہ بخش دیے جائے مرشد، بات عدل پہ آ گئی تو عذاب مسئلہ ہے۔ آج پھر اس کی سریلی آواز اس محفل کی جان بنی تو پورے ہال میں گونج رہی تھی۔ وہ روز کچھ ایسا سناتی تھی جو اس کی زندگی سے وابستہ ہوتا تھا، نہ جانے کہاں سے لفظوں کو پروتی، جو گزر چکا تھا اس پر اسے لفظوں کے ذریعے بیان کرتی تھی۔ روز اور لوگ اس کے کئی الفاظوں پہ بس واہ واہ کرتے تھے، کیونکہ وہاں سب لفظ سنتے تھے، سمجھتا کوئی نہ تھا۔ کوئی الفاظ سمجھتا بھی کیوں؟ ایک کوٹھے پر مرد الفاظوں کو سمجھنے نہیں، بس دل بہلانے جاتا ہے، طوائف کو سمجھا نہیں، اس سے دل بہلایا جاتا ہے، اور یہی دنیا کی ریت ہے۔ مگر وہ روز اس امید سے اپنے درد کو لفظوں کا چولا پہنا دیا کرتی تھی کہ شاید کوئی تو ہو جو اس کے درد بھرے لفظوں کا مطلب سمجھ سکے، شاید قسمت کسی کو تو اس کا خیر خواہ بنا کر بھیجے، کبھی تو خدا مہربان ہوگا اس بدقسمت لڑکی پر، کیونکہ وہ تو 70 ماؤں سے بڑھ کر محبت کرتا ہے اپنے بندوں کو، تو وہ کیسے اسے اس سے سکتے بلکتے ہوئے چھوڑ سکتا ہے؟ واہ 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 واہ، کیا کلام کرتی ہے یہ لڑکی، قسم سے دل جیت لیتی ہے۔ محفل میں بیٹھے ایک آدمی نے اونچی آواز میں اس کی شاعری کو داد سے نوازتے کہا تھا، بالکل بالکل۔ باقی محفل میں موجود لوگوں نے اس آدمی کی تائید کی تھی۔ دائی کے پاس ہمیشہ ایسی ہی لڑکیاں پائی جاتی جن کا ذوق منفرد اور انداز دل لبھانے والا ہو۔ دائی نے فقریہ مسکراہٹ لب پہ سجائے سب کو مخاطب کرتے ہوئے کہا تھا، پھر میری طرف سے 20,000 روپے دائی، تیری اس چمک چلو کے لیے، اسے کہہ دوبارہ کوئی منفرد سا کلام سنا دے ہمیں۔ اسی آدمی نے فوراً جیب سے پیسے نکال کر دائی کے سامنے رکھتے ہوئے کہا تھا، جس پر دائی مسکرائی تھی۔ بالکل جناب، کیوں نہیں، آخر آپ جیسے لوگوں ہی تو ہمیں اہمیت اور اپنی چاہت بخشتے ہیں۔ چلو دل نشیں سناؤ ایک کلام ہمارے مہمان کو۔
दाई ने हॉल के बीचों बीच बैठे दिलनशी को देखते हुए कहा था। इसने एक ज़ख्मी नज़र दाई पर डाली थी जो ऐसे गंदे काम को अपनी अहमियत से मिला रही थी। औरत होकर वह ऐसे काम कर रही थी जो खुद दूसरी औरतों के घरों को तबाह करने को सामान बन रही थी। मगर फिर दिलनशी जैसे माजी में चली गई थी। वो हंसी यादें जो इससे इस दलदल में धकेल कर चली गई थी, इसके कुछ ज़ख्म फिर से ताज़ा हुए थे। तेरे इश्क की पड़ गई मार मुर्शद, मैं रोई ज़ारो ज़ार मुर्शद। तो कदम ज़मीं पे रखे तो हो सीने में झनकार मुर्शद। मैं प्यास हूँ जैसे सहरा की, तो चश्मा ठंडा ठार मुर्शद। मुझे इश्क उड़ाए फिरता है, इस पार कभी उस पार मुर्शद। किस जाल से तूने बांधा है, मैं भूल गई सब वार मुर्शद। तो डाल कफस मेरी खुश न हो, तो डाल कफस मैं खुश न हूँ। तेरी चाहत है तेरी हार मुर्शद। तू शाह मेरे दो आलम का, ये दिल तेरा दरबार मुर्शद। तो रोग है अंदर पलता है, मैं अज़लों से बीमार मुर्शद। मैं तुझसे खुद को मांगू तो फिर करना ना इनकार मुर्शद। तेरे नाम पे हंस के जहर पीऊँ, जहाँ दे दूँ तुझ पे बार मुर्शद। मेरे इश्क ने आईना पहना है, आ तू भी पत्थर मार मुर्शद। तेरे हाथ शिफा सब रोगों की, मैं सदियों से बीमार मुर्शद। तेरे नाम पे कैसे बिकती हूँ, आ देख सरे बाजार मुर्शद। यूँ हाथ बढ़ा मैं जी उठूँ, एक मौजिज़ा दरकार मुर्शद। मेरा इश्क जुनून से ढलने लगा अंजाम तख्तेदार मुर्शद। तेरे इश्क की पड़ गई मार मुर्शद, मैं रोई ज़ारो ज़ार मुर्शद। इसकी आंखें भर आ गई थी इस गज़ल को पढ़ते हुए। इसकी कुल ज़िंदगी की तर्जुमान थी ये गज़ल। जबकि महफिल में वाहवाही की आवाज़ें गूंजने लगी थी, वो नमा के लिए उठी और वहाँ से चली गई, क्योंकि मज़ीद वहाँ रुकना इसके लिए मुहाल हो रहा था। वो तो रो देने की करीब थी, इसलिए इसने राह फरार चुनी थी और अपने कमरे में आकर ख़ुद को कमरे में बंद किए। अपनी बदकिस्मती और कम अकली पे ज़ार रोने लगी थी। इंसान की हिमाकत और लड़की का गलत कदम इसे किस हद तक तकलीफ़ से दो चार कर सकता है। दिलनशी की हालत और कहानी लोगों के लिए सबक थी। अल्बर्ट वो जो किताब खोले किताब बीने में मसरूफ़ था। जॉली की अचानक पुकार पर इसे देखने लगा था। क्या हुआ, इसने इसे देखते हुए पूछा था जो इसे ही देख रही थी। अल्बर्ट प्लीज़ मुझे बताओ ना इस किताब के बारे में, मुझे बहुत क्यूरियोसिटी हो रही है कहानी पूरी सुनने। जैसे वो आज ठान कर आई थी कि वो कहानी सुन कर रहेगी। जॉली माई क्यूटी ब्यूटी, बस कुछ पेजेस रहते हैं, मैं वो रीड कर लूँ फिर तुम्हें तफसील बताऊँगा। इसने इसे देखते हुए मोहब्बत से कहा था, मगर जॉली तो जैसे कुछ सुनने के मूड में ही नहीं थी। नहीं अल्बर्ट, मुझे आज ये स्टोरी सुननी है, मतलब सुननी है। तुम कब से मुझे लारे लगा रहे हो, इसने शिकवा करते हुए कहा था, जिस पर अल्बर्ट मुस्कुराया था। जॉली माई क्यूटी ब्यूटी, यहाँ आओ बैठो, इसने इसका नाराज़गी से फूला चेहरा देख मोहब्बत से कहा था और अपने सामने कुर्सी पर बैठने का कहा था, जिस पर वो बैठ गई थी, मगर चेहरा हनूज नाराज़गी की अलामत लिए हुए था। अच्छा मैं तुम्हें स्टोरी सुनाता हूँ, इसने मुस्कुराते हुए कहा था और इसकी बात सुनकर जॉली ने मुस्कुरा कर इसे देखा था। सुनाओ ना, इसने खुश होते हुए कहा था। तुम्हें पता है माई क्यूटी ब्यूटी, ये कहानी रियल है, जिसे इस वक्त के किंग ने खुद लिखा है। किंग फरहान एक सालिम जादूगर था, एंड यू नो व्हाट, मैं खुद भी उस वक्त का एक हिस्सा रह चुका हूँ। अल्बर्ट ने इसे देखते हुए कहा था, जिस पर वो हैरान हुई थी। क्या मतलब तुम्हारा, इसने हैरानगी से पूछा था। मतलब कि माई क्यूटी ब्यूटी, मैं भी उस वक्त का एक हिस्सा था वो जो तब भी इसे पढ़ना चाहता था और अब भी। ये मुझे इस किताब से इल्म हुआ और तुम्हें पता है ये तब ये ख्वाहिश ही रह गई थी जो अब पूरी हुई और मैं इस किताब को पढ़कर हासिल कर पाया हूँ। इसने इसे बताया जो इसे सुन रही थी। पता है फरहान के 4 दोस्त थे, बिल्कुल जिगरी दोस्त, एक के लिए दूसरा हाजिर, जिस मुझां का ताल्लुक माना जाता था इन चारों के मुतालिक। मगर एक वक्त ऐसा आया कि सब बर्बाद हो गया। वो वक्त बस एक लफ्ज़ और नहीं, वरना अच्छा नहीं होगा। अभी वो मज़ीद गुल अफशानी करता कि दाएं बाकी अपने साथियों के साथ वहाँ आते हुए चीखते हुए बोला था, आखिर कैसे इसकी ब्यूटी से पहले वो कहानी कोई और सुन सकता था, क्योंकि ऐसा करने से फरहान कभी भी इस जंगल से आज़ाद ना हो पाता। कौन हो तुम, जॉली ने इन 4 अजीब दिखने वाले जानवरों को देखते हुए डर कर पूछा था, जो इंसानों की बोली बोल रहे थे। ये तुम लोग तो
हाँ हम वही है, ये किताब हमारी, हमें वापस कर दो वरना। अल्बर्ट इन्हें देखते ही समझ गया था कि वो लोग कौन हैं, क्योंकि वो आधी से ज़्यादा किताब पढ़ चुका था और वो इन चारों के मुतालिक भी जान गया था। मगर इसकी बात इसके हलक में निकलने के लिए आमेदा नहीं थी। तभी तो दाइम ने फुंकारते हुए कहा था, ये किताब दे दो हमें वरना हम कुछ भी कर सकते हैं। फहद फ़ौरन दाइम का अधूरा छोड़ा गया जुमला मुकम्मल अदा करते हुए कहने लगा, ये किताब मेरी है, अब मैं लाया हूँ इसे। अल्बर्ट फ़ौरन इस किताब को अपने हाथों में करता बोला था, आखिर कैसे दे देता। वो किताबी ने जो बस कुछ फर्क रहते हैं, इसे कहानी का अंजाम पढ़ना है, वो बिना पढ़े बुक कैसे दे देता उसे। तुम ऐसे नहीं मानोगे, घी के निकालने के लिए उंगली को टेढ़ी करना पड़ेगा। दाइम इसकी हठधर्मी को देखते हुए गुस्से से फ़ौरन बोला था और वो फ़ौरन आधी बन मांस की शक्ल इख्तियार करता जॉली को अपने शिकंजे में कर चुका था। आह जॉली, जॉली के ज़ोरदार चीख पर अल्बर्ट ने तड़प से पुकारा था। वो बीवी और मोहब्बत थी वो कैसे इसे तकलीफ़ में देख सकता था। वो दाइम इसकी कमज़ोरी से वाकिफ़ हो चुका था। तभी इसने अपना वार अल्बर्ट के बजाय जॉली पर किया था, क्योंकि वो कोई भी चूक नहीं चाहता था। वो किताब बहुत ज़रूरी थी सबके लिए। इस किताब से फरहान आज़ाद और वो चारों इसकी अजीब शक्ल व सूरत से आज़ाद हो सकते थे। छोड़ दो जॉली को, अल्बर्ट ने फ़ौरन कहा था। वो किताब दे दो मुझे, मैं मार सकता हूँ तुम दोनों को, मगर मेरा ज़मीन नाहक किसी को मारने की इजाज़त नहीं देगा, इसलिए नरमी से बोल रहा हूँ, वो किताब मुझे दो। दाइम ने गुस्से से फुंकारते हुए कहा था, जिस पर इसके शिकंजे में खड़ी जॉली बेहोश हो गई थी, जबकि अल्बर्ट पूरा कांप उठा था। इस कदर गुस्से को ये नरमी कह रहा है तो गुस्से को क्या कहेगा ये। फहद यासिन की जानिब थोड़ा झुकते हुए इस्तफसार किया था। जाके खुद पूछ ले उससे। यासिन ने सिखा जाने वाली नज़रों से घूरते हुए कहा था, मेरा दिमाग ख़राब है, मैं गर्म पानी में हाथ डालकर अपना हाथ जला लूँ। फहद ने फ़ौरन से देखते हुए कहा, जिस कदर बातें आती है तुम लोगों को, इस कदर अक्ल आ जाए तो क्या ही बात है। यासिन ने तंज़ी अंदाज में कहा था, बातें कौन सा अक्ल के बगैर हो जाती है, बातें करने के लिए भी एक अदद दिमाग और छटाक भर अकल की ज़रूरत है। फहद ने इसके तंज को मजाक का रुख देते हुए अपनी अकल का जौहर दिखाया था, जिस पर यासिर महज तासुफ से सर हिलाकर रह गया था। ये लो किताब, प्लीज़ मेरी बीवी को छोड़ दो, वो बेकसूर है, इसे किसी भी बात का इल्म नहीं है। अल्बर्ट ने इसके हाथों में बेहोश खड़ी अपनी बीवी को देखते हुए दाइम के जानिब किताब बढ़ाकर कहा था। वो कैसे अपने मताए जहाँ को इस तरह देख सकता था। यासिर किताब लो इससे। दाइम ने अपने पास खड़े यासिर को संजीदगी से हुक्म दिया। वो हुक्म की तामील करता वो किताब अल्बर्ट से ले चुका था। आतिफ, तुम अपनी जादुई ताकत इस्तेमाल करते हुए इन दोनों की याददाश्त को ख़त्म करो। इन्होंने जो भी पढ़ा सुना सब देखा, सब कुछ मिटा दो इनके जहनों से। दाइम ने आतिफ को देखते हुए कहा था, जिसने फ़ौरन सर को हिलाया। दाइम ने जॉली को अल्बर्ट की जानिब धकेल दिया, जिसे फ़ौरन बर्क रफ्तारी से अल्बर्ट ने थामा था। आतिफ ने आंखें बंद की और कुछ पढ़ना शुरू किया और यकायक हाथों से कुछ शुआएं निकली थी, जो सीधे अल्बर्ट और बेहोश जॉली के माथों पर जज्ब होने लगी थी। एक एक करके सारे वाक़यात और बातें इन दोनों के दिमाग से निकलने लगी थी। अल्बर्ट भी कुछ ही लम्हों में खामोश होकर जॉली के बराबर बेसुध सा होकर गिर पड़ा था। चलो हमें चलना चाहिए, अब इस किताब को इसकी जगह पर रखना है, वो आने वाली होगी। दाइम ने फ़ौरन पलटते ही कहा था और वो चारों फ़ौरन वहाँ से गायब हुए थे इस किताब को लेकर, ताकि इस किताब को इसकी असली जगह पर रखा जा सके, क्योंकि इस किताब का असली हक़दार बस यहाँ आने वाला था। सुबह के 9 बज रहे थे जब रानी और ज़ीशान दिलावर ख़ान के घर खान विला में मौजूद थे। सर, आपने कहा था हम आ गए, हमें बताएं हमें क्या करना है, क्योंकि जो काम आपने हमें दिया है इसके बारे में हम मज़ीद जानने की ज़रूरत है, तभी हम अपना काम बेहतर तरीके से सर अंजाम दे सकते हैं। ज़ीशान ने दिलावर ख़ान को देखते हुए कहा था, हाँ क्यों नहीं, चलो तुम दोनों को मेरी बेटी से मिलवाता हूँ, वो अपने कमरे में है। दिलावर ख़ान ने दोनों को देखते हुए कहा था। वो दोनों को लिए अपनी बेटी के कमरे की जानिब बढ़ा था। सीढ़ियाँ चढ़ते ऊपर मौजूद 2 कमरे छोड़कर तीसरे कमरे की जानिब कदम बढ़ाए थे। रानी और ज़ीशान भी इनके पीछे चल रहे थे, जबकि मतलूबा कमरे के सामने आकर वो रुके थे। ये कमरा है मेरी बेटी को, उन्होंने इन दोनों को बताया था। फिर कमरे का दरवाज़ा खोला था। मशू कहाँ हो तुम? दिलावर ख़ान ने कमरे में दाखिल होती ही मोहब्बत से अपनी बेटी को पुकारा था, क्योंकि कमरा बिल्कुल खाली था और दिलावर ख़ान अपनी बेटी को जानते थे वो कहीं छुपी हुई है। मशू, छुपी हुई अपनी डैडी के साथ गेम खेल रही है। दिलावर ख़ान अपने लहजे में दुनिया जहान की मोहब्बत समाए बोले थे। रानी और ज़ीशान हैरत से सब देख रहे थे। दिलावर ख़ान ने आखिरी बार से पुकारा था। वह साइड पर बने टेबल के पास से निकली थी, जहाँ थोड़ी सी जगह पर वो दरवाजे पर किसी की कदमों की चाप सुनकर छुप गई थी। घर में सिवाय इन दोनों की कोई नहीं होता था। इसे इल्म था कि बाहर इसके डैड खड़े हैं, तभी वो फ़ौरन वहाँ छुप गई थी और अब वहाँ से निकल कर दबे कदमों से दिलावर ख़ान की जानिब बढ़ी थी, जिनकी पुष्ट इसके सामने थी। अब इसका
अब इसका इरादा इन्हें डराने का था। दरवाजे के पास खड़ी रानी और ज़ीशान को वो देख नहीं पाई थी, मगर वो दोनों इस लड़की को देख हैरान रह गए थे। बहू, मिशी ने दिलावर खान के पीछे आते ही इन्हें डराया था। उन्होंने डरने की एक्टिंग की थी, जिस पर मिशी खिलखिलाकर हंस पड़ी थी। ज़ीशान, क्या तुम भी वही देख रहे हो जो मैं देख रही हूँ, या फिर मेरी आंखें कुछ और ही दिखाने लग गई है? रानी के सामने खड़ी लड़की पर एक तफसीली निगाह डालते हुए अपने पास खड़े ज़ीशान से अपनी आंखों को देखा मंजर की तस्दीक चाह रही थी। रानी यार, मैं भी वही देख रहा हूँ जो तुम देख रहे हो। जब तुम्हारी ज़बान बोलना नहीं रुकी कभी, तो तुम्हारी आंखें कैसे देखना भूल सकती है? ज़ीशान ने दांतों को चबाए कहा था, जिस पर रानी थोड़ी खजल हुई थी, मगर इसके पाँव पर अपना पाँव नहीं भूली थी, जबकि ज़ीशान बस पाँव को सहलाता रह गया था। मशू, ये देखो, तुम्हारे लिए 2 दोस्त लाया हूँ जो तुम्हारे साथ रहेंगे, खेलेंगे, कूदेंगे। दिलावर खान ने मिशी की तवज्जो दरवाजे पे खड़े ज़ीशान और रानी की जानिब करवाते हुए कहा था। इसने इन्हें देखा था, ये मेरे दोस्त हैं? मिशी ने हैरत से पूछा था। जी बिल्कुल, ये मेरी प्यारी सी गुड़िया के प्यारे से 2 दोस्त हैं, जवाब से जो अब से मेरी मिशू के साथ खेला करेंगे। दिलावर खान ने मुस्कुराकर बताया था, ये मेरी बेटी है मिशी दिलावर खान। दिलावर खान ने इसका तारुफ करवाया था। सर, ये आपकी बेटी जिसका ख्याल हम दोनों ने रखना है, इसके साथ खेलना है, हमें ये हमारा काम है? ज़ीशान ने हैरानगी से पूछा था, क्योंकि इसे यकीन नहीं आ रहा था कि इसे काम क्या दिया गया है। हाँ, तुम्हें इसके साथ रहना है पूरा दिन, बाकी बातें मैं तुम्हें बाहर बताता हूँ, उन्होंने इसे देखते हुए कहा था। मिशी बेटा, तुम यहाँ बैठ कर खेलो, हम आते हैं। दिलावर खान ने अपनी बेटी को देखते हुए कहा था। वो सर को हिलाती बेड पर बैठ गई और टेडी बेयर से खेलने लगी थी। रानी और ज़ीशान दिलावर खान के साथ कमरे के बाहर निकले थे। रानी ने एक नज़र इस लड़की पर डाली थी, जिसके बालों पर 2 छुट्टियाँ बंधी हुई थी। चेहरे पे इंतहा की मासूमियत थी, कद भी मुनासिब था, उम्र भी लगभग 20 से 22 साल के करीब थी। मतलब दिखने में बिल्कुल मिच्योर लड़की लगती थी, मगर इसकी हरकतें देख वो दोनों हैरत में डूब गए थे। ये मेरी बेटी है, इसके साथ एक वाक़या हो गया था जिसकी बदौलत ये अपनी याददाश्त खो बैठी है, बिल्कुल बच्चों जैसा जहन होकर रह गया है। इसको डॉक्टर को दिखाया, उन्होंने ये कहा है कि ये कवर कर सकती है, बस इसे कुछ वक्त और कुछ मुखलसी की ज़रूरत है, ऐसे लोगों की जो इससे दोबारा ज़िंदगी की जानिब वापस ला सके। और हॉस्पिटल में मुझे तुम दोनों दिखे और मुझे लगा कि तुम दोनों इसे वापस ला सकते हो ज़िंदगी की जानिब। दिलावर ने इन्हें देखते हुए कहा था। रानी को आज पहली बार अपनी सोच पर निदामत महसूस हुई थी, क्योंकि इसने जैसा दिलावर खान के बारे में सोचा था वैसे नहीं थे। इनकी हालत बहुत मुख्तलिफ थी। जिस तरह हम कोशिश करेंगे इंशाल्लाह बेहतरी होगी, ज़ीशान मुस्कुराते हुए कहा था। लेकिन ऐसा हुआ क्या था? एक अच्छी खासी लड़की ऐसी कैसे हो गई? वो जो कब से खामोश थे, बलाकर अपनी खामोशी तोड़ती हुई गोया हुई थी। वक्त बहुत जालिम होता है, ये अच्छे खासे इंसान को पागल कर देता है। ज़िंदगी में मिलने वाले दर्द इंसान को कहीं का नहीं छोड़ते, बस इसे भी दर्द ने इस कदर अजियत से दो चार कर दिया कि वो अपनी असल हालत खो बैठी है। दिलावर खान ने दुख से कहा था। मगर दर्द तो वक्त के साथ ख़त्म हो जाता है। रानी ने इनकी बात का जवाब दिया था। नहीं, दर्द कभी ख़त्म नहीं होता, बस हम दर्द के साथ जीना सीख जाते हैं और हमें लगता है कि ये दर्द ख़त्म हो गया। असल में हम समझौता कर लेते हैं इस दर्द के साथ, फिर वो दर्द नहीं, एक ऐसी निशानी बन जाता है जो कभी मिट नहीं सकता, जैसे कि पत्थर पे लकीर। इंसान का दर्द किसी वक्त एक ही लम्हे में अपनी गिरफ्त ख़त्म नहीं करता, बल्कि हमारे शऊर से बाहर का रास्ता बनाने में वक्त लगाता है। गम का एक मौसम है और गुस्से का एक मौसम है, सुकून का एक मौसम है और उम्मीद का भी एक मौसम है। मैं भी उम्मीद के सहारे हूँ। वो मौसम जल्द आए, मुझे मेरी सब्र का फल मिले, मेरी बेटी ज़िंदगी की जानिब लौट आए। दिलावर शाह दुखे दिल के साथ कहा था। इंशाल्लाह सर, अल्लाह बेहतर करेगा। वो कभी अपने बंदों को नाउम्मीद नहीं छोड़ता। आप बस अल्लाह पर भरोसा करें। कोशिश हमारे हाथ में, जो हम करेंगे, और फल देना अल्लाह के हाथ में, जो वो हमें अपनी सोच से बढ़ कर देगा इंशाल्लाह। रानी ने मुस्कुरा कर कहा था। आज पहली बार था जो दिलावर खान के सामने मुस्कुराई थी, वरना जितनी बार भी मुलाकात हुई थी वो संजीदा थी इनके साथ। मगर अब वो समझ गई थी कि पांचों उंगलियां एक सी नहीं होती। जहाँ जालिम लोग हैं वहाँ अच्छे लोग भी हैं जो दूसरों का बुरा करते हैं, वहाँ कुछ लोग हैं जो दूसरों का भला भी करते हैं। सुबह सब मसरूफ़ थे, क्योंकि रात 10 की फ़्लाइट थी। कितनी पैकिंग रहती है। रमशा और जरी वैसे तो बहुत खुश थी, मगर दुखी बीती के पीछे सवारा बेगम अकेली रह जाएगी। अम्मी आप कहती तो हम नहीं जाएंगे। ये कोई 10,000 भी बार था, रमशा ने सवारा बेगम से कहा था, मगर हर बार इनका एक ही जवाब था, तुम आराम से जाओ, मेरी फिक्र नहीं करो, अपनी जीत एंजॉय करो। ज़िंदगी बार बार मौके नहीं देती, कितनी बार एक ही जवाब सुनोगी तुम मुझसे रमशा? सवारा बेगम बार बार एक ही रट से तंग आती हुई गोया हुई थी, जिस पर मुंह बनाए वो बैठ गई थी। जबकि पैकिंग कर रही जीना मुस्कुराई थी। अम्मी नहीं, अच्छी तरह डांट ही ले। आप लगता है जितने दिन वहाँ रहेगी
ये आपकी डांट को मिस करेगी, इसलिए इन्हें अच्छा वाला डांटे, तभी ये बार बार आपको तंग कर रही है। इसने मुस्कुराते हुए शरारत से इन्हें कहा था, फालतू का मत बोलो जरी। रमशा ने इसे घूरते हुए टोका था, जिस पर जरी ने कंधे उचकाए थे और पैकिंग जारी रखी थी। अम्मी, मैं आपको बहुत मिस करूंगी। इसने सवारा बेगम की गिरद बाजुओं का घेरा बनाते हुए लाड से कहा था, मैं भी अपनी दोनों बेटियों को बहुत मिस करूंगी। उन्होंने भी इसका माथा चूमते हुए मोहब्बत से कहा था, जिस पर जरी मुस्कुराई थी। अब पिया, जल्दी से पैकिंग करने में मदद करे मेरी, वरना आपकी आधी से ज़्यादा चीज़ें यहीं रह जाएगी। मुझे भी ना कहिएगा, फिर मुझे ना कहिएगा। जरी ने इसे आराम से बैठा देख कहा था, ऐसे कैसे रह जाएगी। इसने फौरन उठते हुए, जिस पर समरा बेगम मुस्कुराई थी। दोनों इनकी मुस्कुराहट और जीने की वजह थी। इन दोनों के बगैर तो जैसे वो कुछ भी नहीं थी। इन दोनों की खातिर ही तो उन्होंने अपनी जवानी सफ़ेद जोड़े में निकाल ली। दूसरी शादी का सोचा तक नहीं। कहीं सौतेला बाप इनको वो मोहब्बत देने से कासिर रह जाए, जैसी मोहब्बत सगा बाप अपने बच्चे को दे सकता है। मोहब्बत मोहब्बत होती है, मगर कहते हैं ना, खून खून की मोहब्बत अलग ही बात होती है। जो एहसास और मोहब्बत एक खूनी रिश्ते को अपने खूनी रिश्ते से होती है, वैसी मोहब्बत शायद ही कोई दूसरा कर सके। और यहाँ तो मामला भी दो बेटियों का था, और मुमकिन था कि अगला इंसान कैसा भी हो सकता था। इसलिए उन्होंने रिस्क लेना मुनासिब न समझा। मगर यहाँ तो वो अपनी बेटियों को दूसरे मुल्क अकेला भेज रही थी। इनके दिल में हज़ारों ख़दशे थे, मगर अल्लाह के सुपुर्द कर दिया था उन्होंने अपनी बेटियों की इज्जत और जान को। जो चीज़ें अल्लाह के सुपुर्द कर दी जाए, इनकी हिफाजत करना अल्लाह का काम होता है, जो वो बखूबी निभाता भी है। यहाँ बात बेटियों को दुनिया के मुकाबिल खड़ा करने की थी, और दुनिया का मुकाबला करने के लिए इनके अंदर सबसे पहले कॉन्फिडेंस होना चाहिए, क्योंकि यहाँ सबको अपनी जंग अकेली लड़नी होती है। सवारा बेगम कब तक इनके साथ रह सकती थी। जब अल्लाह का हुक्म हुआ, इन्हें तो उनके पास जाना था, इसलिए उन्होंने दिल पे पत्थर रख कर इन्हें भेजने का फैसला किया था। वो लोग इस वक्त काल कोठरी में मौजूद थे, जहाँ वो कुछ दिन पहले आए थे। इनके हाथ में वो किताब थी, जिसको पाने के लिए उन्होंने इतनी तगदो की। फरहान, हम ये किताब ले आए हैं। दाइम ने किताब फरहान के सामने करते हुए इसे देख कर कहा था, बहुत खूब दाइम, तुमने बहुत अच्छी तरह अपने इस काम को अंजाम दिया है। फरहान ने किताब को देखते हुए इसके काम को दाद देते हुए कहा था, क्या फरहान, तुम्हें हम 3 लोग नहीं दिख रहे हैं क्या? इस काम को हमने भी किया है, मगर दाद तो तुम दाइम को ही देते हो। यासीन ने मुँह बनाते कहा था, जिस पर फरहान का कहा इस काल कोठरी में गूंजा था। कितनी मुद्दत के बाद आज फरहान मुस्कुराया था। इस काल कोठरी में जल तरंग सी बिखर गई थी इसके कहे से। तुम भी ना। अच्छा बताओ, पाकिस्तान किसने बनाया? पाकिस्तान का बानी कौन है? फरहान ने यासिर को देखते हुए पूछा था। कायदे आज़म, इसने फ़ौरन जवाब दिया था। अब इतना मुश्किल सवाल भी ना था। अच्छा बताओ, भारत का बानी कौन था? इसने फिर से सवाल दागा था। इनके बानी गांधी जी हैं, फ़ौरन जवाब आया था। काफ़ी ज़हीन हो, फरहान ने दाद दी थी। मगर ये तो वो बात हो गई। सवाल गुंदम, जवाब चला। मतलब कोई सर पैर है तुम्हारी बातों का? मैंने क्या कहा? तुमने क्या जवाब दिया? यासिर को जब कुछ समझ न आया तो बोल पड़ा, जिस पर दाइम और फरहान दोनों बैक वक्त मुस्कुराए थे। बस बात यही तो है, पाकिस्तान और हिंदुस्तान बनाने में अकेले कायदे आज़म और गांधी ही शामिल नहीं थे। इनके साथ सैकड़ों लोग थे जिन्होंने इनकी मदद की। बिलाशुबा वो इनके बगैर ये सब मुमकिन ना था, मगर क्रेडिट सबसे पहले इन दोनों को मिलता है। क्यों? क्योंकि इन दोनों ने अकल से काम लिया। काम करने वाले तो बहुत हैं, मगर इन सबको यकजा करना, इन्हें सीधा रास्ता दिखाना, इनकी रहनुमाई फरमाना, ये काम इन दोनों ने किया था। लीडर वो थे अपने गुरु के, तभी क्रेडिट इन्हें मिलता है। और यह भी ग्रोह तुम लोगों था, मगर इन्हें लीड दाइम ने किया। और मुझे पता है, जब मुसीबत में फंसे होंगे जब फंसे होंगे तुम्हारी रहनुमाई इसी ने की होगी। की थी ना? फरहान कहते कहते इसे देखकर पूछने लगा, जिस पर यासीन ने नजरें झुकाए सर को हाँ में हिलाया था, जो कि सच भी था। जब मुसीबत आई थी, दाइम ने अपनी अकल का इस्तेमाल करते हुए मुसीबत को मात दी थी। बस फिर इसीलिए इसे दाद दी थी मैंने पहले। मगर तुम लोगों का काम भी कोई आसान न था। तुम लोगों ने भी अपनी जान मुश्किल में डाली। इसके लिए मैं तुम सबका शुक्रगुजार हूँ। तुम लोग वाकई सच्चे दोस्त साबित हुए हो, फरहान ने मुस्कुराते हुए कहा था, जिस पर यासिर को अपनी अकल पर मातम करने का दिल चाहा था। वो कैसे बेतुका सवाल कर गया था जो इसे ही शर्मिंदा कर गया था। वाकई इंसान की ज़बान उसे सर उठाने और सर झुकाने पर मजबूर कर सकती है। खैर, अब तुम ये किताब वेटिकन लाइब्रेरी में उस जगह पर रखा। इसने माहौल का असर ज़ाय करने और सबका ध्यान इस बात से हटाने के लिए कहा था। ठीक है, हम आज रात ये किताब वहाँ रख देंगे। दाइम ने फ़ौरन से जवाब दिया था। वो आ रही है आज रात, यहाँ रात की फ़्लाइट है उसकी। फरहान मुस्कुराते हुए कहा था, जिस पर दाइम ने इसे चौंक कर देखा था। तुम्हें कैसे पता? इसने हैरानगी से पूछा था। क्योंकि तुम ये भूल रहे हो फरहान, हर लम्हे की खबर
ہے اور اب تو میری کتاب میرے پاس آ گئی. کچھ طاقتیں اس سے مجھے مل چکی ہیں جس میں ایک یہ ہے کہ آنے والے وقت کے بارے میں جان سکتا ہوں. فرحان نے مسکراتے ہوئے کہا تھا. ویسے ایک بات بولوں فرحان، دائر نے جیسے اسے اجازت چاہیے تھی. اسے ضرورت تو نہ تھی کہ وہ اجازت چاہے کیونکہ دوستی کافی گہری تھی، مگر پھر بھی وہ سوال کر گیا تھا. بولو، ہاں بولو نا. فرحان نے مسکرا کر جواب دیا تھا. اس کے ہونٹوں سے مسکراہٹ لمحے بھر کو بھی جدا نہیں ہو رہی تھی. ایک تو کتاب ملنے کی خوشی، دوسری آزادی اور تیسری طاقت کے ذریعے اس کے یہاں آنے کا پتہ لگنے کی خوشی. بس وہ تو جیسے آج اتنا خوش تھا کہ شاید ہی کبھی خوش ہوا ہو. تمہیں دیکھ کر نہیں لگتا کہ تم کبھی بیسٹ ہوا کرتے تھے، ظالم، سنجیدہ، پتھر دل اور دوسروں کو مار دینے والے، اپنے فائدے کے لیے اپنوں کو نقصان پہنچانے والے ظالم جادوگر. کنگ فرحان دا بیسٹ. دائم نے اس کی پرانی زندگی کو یاد کرتے ایک کپ پی لیے اسے کہا تھا. فرحان کی گزشتہ زندگی کے بارے میں سوچ کر اس کے جسم میں خوف کی لہر دوڑ گئی تھی. کتنی بھیانک تھی اس کی زندگی. اس کے جگری دوست تک اس سے خوف کھاتے تھے. بس انسان بدل جاتا ہے جب گمراہی کی چادر ہٹتی تو اللہ ایسے انسان کو ضرور بھیجتا جو اسے اس خدا تک پہنچا دے. اور میری زندگی میں میری بیوٹی آئی تھی جس نے مجھے اصل زندگی سے روشناس کروایا، مگر وقت کی بے دردی نے مجھ سے میری بیوٹی چھین لی، مجھے زندان میں ڈلوا دیا. میری زندگی میں جو روشنی آنے لگی تھی وہ پھر سے اندھیروں کی نظر ہو گئی اور میں پھر سے اکیلا ہو گیا. مگر اب میں اپنی بیوٹیوں کو پا کر رہوں گا، اپنی زندگی کی نئی شروعات کروں گا، اس کہانی کا انجام کروں گا. اس نے ایک جذبے کے عالم میں کہا تھا. انشاءاللہ. سب نے مسکرا کر دل سے کہا تھا. ساری تیاریاں مکمل ہو چکی تھی. سورج اپنے ٹھکانے واپس لوٹنے لگا تھا. اندھیرا ہر سو اپنے پر پھیلانے لگا تھا. پھر کچھ ہی دیر بعد وہ وقت بھی آ گیا تھا جس کا سب کو انتظار تھا. گھڑی کی ٹک ٹک وقت کا بتا دے رہی تھی. ٹن ٹن ٹن. گھڑی کے 9 کے بجتے ہی گھنٹہ پورا ہونے پر گھنٹہ بجایا تھا. 9 بج گئے. چلو چلتے، پہنچتے بھی آدھا گھنٹہ لگ جائے گا. وہ جو کب سے گھڑی پہ نظریں جمائی بیٹھی تھی. کب 9 بجے اور وہ ایئرپورٹ کے لیے نکلے. وہ 9 بجتے فوراً اٹھتے ہوئے بولی. ارے لڑکی، بریک لگاؤ، صبر کرو، مجھے دوپٹہ تو لینے دو. اس کو جلدی سے بیگ پکڑتے جاتا دیکھ اس نے اسے روکتے ہوئے کہا تھا. اچھا جلدی کرو نا. مہنور نے اسے دیکھتے ہوئے کہا تھا. وہ فوراً دوپٹہ لیتی اس کے ساتھ گھر سے نکلی تھی. جلدی کرو لڑکیوں، وقت ہو گیا ہے. سوارا بیگم نے رمشا اور زری کو آواز دیتے ہوئے کہا تھا. جی امی بس آئی. زری نے فوراً جواب دیا تھا اور دوپٹے کو سلیقے سے باندھتی وہ کمرے سے باہر نکلی تھی. اس کی عادت تھی، وہ ہمیشہ حجاب میں رہا کرتی تھی. وہ اب بھی حجاب میں خوبصورتی سے سر پہ سجائے وہ بالکل تیار تھی. ابھی آ بھی جائے. 9 بج گئے یار، 10 بجے کی فلائٹ ہے ہماری. زری نے رمشا کو آواز دیتے ہوئے کہا تھا. ہاں یار آ گئی. وہ بھی چادر اپنے گرد لپیٹے کمرے سے باہر نکلتی بولی تھی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ نظرت بد سے بچائے میرے بچیوں کو. سوارا بیگم دونوں کی نظر اتارتے کہا تھا، جس پر دونوں کے لب مسکرائے تھے. ویسے نہ میں زیادہ پیاری لگ رہی ہوں نا امی اپیا سے، ہے نا امی؟ زری نے رمشا کو شرارت سے دیکھتے ہوئے کہا تھا. ہاں تم ہی پیاری ہو بس. رمشا نے فوراً ترکی بترکی جواب دیا تھا. اچھا لڑو نہیں، جلدی دیر ہو رہی ہے. یہ نہ ہو تمہاری لڑائی کے چکر میں جہاز اڑ جائے. سوارا بیگم نے ان دونوں کو دیکھتے ہوئے کہا تھا. آپ چلیں نا، میں بیگ لاتی ہوں. رمشا نے بیگ پکڑتے ہوئے کہا تھا. سوارا بیگم پیچھے چل دی تھی. وہ تینوں کار میں بیٹھ کر اپنی منزل کی جانب رواں ہو گئی تھی، اس بات سے انجان کہ وہ وہاں کس مقصد کے تحت بلائی جا رہی ہے. وہاں جا کر ان کی زندگی بدلنے والی ہے. وہاں کچھ ایسا معلوم ہونے والا ہے جو انہیں چونکا دے گا. ایسی حقیقت جس پر یقین کر پانا ممکن نہ ہوگا، مگر وہ حقیقت ہوگی. ایک ایسا راز جو سب کی زندگیوں کو ایک نیا موڑ دے گا. آج وہ سارا دن مشی کے ساتھ رہے تھے، اس کے ساتھ کھیلے کودے تھے. انہیں وہ نازک سی لڑکی بہت پسند آئی تھی. ہر ادا سے معصوم تھی. پھر نہ جانے کیوں لوگوں کے دل کانپتے کیوں نہیں. معصوم دل کو توڑتے ہوئے ایک انسان کو اس طرح ذہنی اذیت دے کر نہ جانے لوگوں کو کیا ملتا ہے. ذیشان وہ جو خاموش بیٹھا ہوا تھا اس کی پکار پہ اسے دیکھنے لگا. ہاں بولو، اس نے دیکھتے ہوئے کہا تھا، جو سے تھوڑے فاصلے پہ بیٹھی ہوئی تھی. کھانا کھا کر اپنے ابو کو دوائی وغیرہ دے کر وہ دونوں اب نیچے بچھائی چادر پہ بیٹھے ہوئے تھے. رانی کا ابو دوائی کے زیر اثر سو چکے تھے. ایسا کیا ہوا ہوگا اس لڑکی کے ساتھ جو وہ ایسی ہو گئی؟ جس عمر میں لڑکیوں کے بہت سے خواب ہوتے ہیں، ماں باپ کے خواب ہوتے ہیں، اگر اس عمر میں بیٹیوں کو ایسا روگ لگ جائے تو کیا گزرتی ہوگی اس ماں باپ پر. ان کا تو دل کٹ کے رہ جاتا ہوگا نا. اس نے دکھ سے کہا تھا. یہ دنیا ہے رانی، یہاں سب کی الگ الگ آزمائشیں ہیں. ذیشان فقط اتنا ہی کہہ پایا تھا، ورنہ دل تو اس کا بھی کٹ رہا تھا مشی کی حالت دیکھ کر. تمہاری بات درست ہے، مگر
कभी भी घबरा कर हार न मत। इन आजमाइशों से इस हार और तुम्हारे ख्याल के बीच इस आजमाइश का फैसला लिखा हुआ है। यकीन कामिल कि पुल सिरात से गुजर कर ही मिलता है। सालों से मांगी गई दुआएं रंग लाती है। खुद को इसकी रजा में राजी रखो बस। फिर बरसता है आसमानों से कबूलियत का नूर तो तवक्कल करने वालों पर। तुम बस अपना 100% दो, बाकी नतीजा अल्लाह देगा। इसकी बात को काटते हुए ज़ीशान एक तरंग से बोला था। वो यकटके से देखने लगी थी। रानी, सब अल्लाह के हाथ में, अगर मगर से कोई फ़ायदा नहीं होगा। जो हो गया हम इसे बदल नहीं सकते, मगर होने वाला हमारे हाथ में है। हम चाहे तो अपने मुस्तकबिल को संवार सकते और मैं शिवाजी के साथ जो हो गया सो हो गया। अब बस हमें इन्हें ज़िंदगी की जानिब लाना है, इन्हें इनकी असल में वापस लाना। यकीनन ये बहुत बड़ा चैलेंज है हमारे लिए। बस हमें अल्लाह पर कामिल रखते हुए अपने पूरा 100% देना है। फिर हमारा खुलूस देगा अल्लाह नतीजे हमारी कोशिश से भी बढ़कर देगा इंशाअल्लाह। ज़ीशान ने नरमी से रानी को देखते हुए कहा था, इंशाअल्लाह। इसने मुस्कुराते हुए कहा था, अच्छा चलो अब सो जाओ। शाबाश। इसने इसे देखते हुए कहा, तुम भी सो जाओ। वो लेटते हुए इसे कहने लगी, हाँ हाँ मैं भी सोने लगा हूँ, कहीं तुम ये ना सोचो कि मैं किसी और के पास जा रहा हूँ। इसने लेटते हुए शरारत से कहा था। ज़ीशान, इसने खफकी से इसे पुकारा था। हाँ बोलो ना, इसने मोहब्बत से चू लहजे में कहा था। रानी शर्मा सी गई थी। कुछ नहीं सोचा, इसने दूसरी जानिब करवट लेटे कहा था। इसकी इस हरकत पर ज़ीशान मुस्कुराया था। मुझे वो ज़ख्म मत देना दवा जिसकी मोहब्बत हो, मुझे वो ख्वाब मत देना हकीकत जिसकी वहशत हो, मुझे वो दर्द मत देना कि जिसमें बस अजियत हो, मुझे वो नाम मत देना जिसे लेना क़यामत हो, मुझे वो हिज्र मत देना जो मानिंद रफ़ाक़त हो, मुझे वो नींद मत देना जिसे उड़ने की आदत हो। मेरे बारे में जब सोचो तवज्जो ख़ास रखना तुम, मुझे तुमसे मोहब्बत है बस इसका पास रखना तुम, ये एक एहसास रखना तुम। वो अपनी खूबसूरत गंभीर आवाज़ में गुनगुनाया था। रानी के दिल की धड़कनें एकदम बढ़ी थी। सो जाओ ज़ीशान, वो धड़कते दिल के साथ फ़कत इतना ही कह पाई थी, अच्छा सो रहा हूँ। उसकी हालत से महसूस होता आंखें बंद कर क्या था और रानी भी कब नींद की वादियों में उतरी इसे पता भी न चला। रात की तारीकी ने हर चीज़ को अपनी लपेट में ले रखा था। हर सू अंधेरा किसी बादशाह की तरह हुकूमत कर रहा था। अंधेरे को मात जगह जगह जगमग करती लाइट्स ने दी थी जो अपनी रोशनी फैलाए हर चीज़ की खूबसूरत बना रही थी। उन्होंने मुस्कुराते हुए एयरपोर्ट के अंदर कदम रखा था। जाओ रमशा, तुम पूछ कर और फ्लाइट कब टेक ऑफ होगी। सवारा बेगम ने रमशा से कहा था। वो खुद जरी के साथ बेंच पर बैठी थी। जी अच्छा। रमशा कहती किसी को ढूंढना चाहा जिससे वो फ़्लाइट का पूछ सकती थी, क्योंकि एयरपोर्ट में वो पहली बार आई थी। वो बहुत कंफ्यूज हो गई थी क्या करे क्या नहीं, कि अचानक सामने से आती दो लड़कियां इसे दिखी थी। इनसे पूछती हूँ, इसने सोचते हुए खुद कलामी की और इनके जानिब चल दी। एक्सक्यूज़ मी। अभी वो दोनों वहाँ से गुजरने ही वाली थी कि रमशा ने इन्हें रोका था। जी। मुकाबिल से कहा गया था कि आप मुझे बता सकती है फ़्लाइट कब फ्लाई करेगी। इसने इन्हें देखते हुए पूछा था, आपने कहाँ जाना है। इसने जवाब देने के बजाय उल्टा सवाल किया था। रमशा हैरान हुई थी। जी वो यूरोप। इसने कुछ तवक्कुफ़ के बाद जवाब दिया था। ओ ग्रेट, मुझे भी यूरोप जाना है। माई नेम इज़ महानूर एंड यू। महानूर अपना तारुफ करवाते हुए मुस्कुरा कर इसके मुतालिक पूछा था। मेरा नाम रमशा है। रमशा ने भी अपना नाम बताया था। फ़्लाइट तो 10 बजे फ्लाई करेगी, अभी भी 10 मिनट है और तब तक बैठ कर बातें कर लेते हैं। महानूर ने जवेरिया का हाथ पकड़े इसे भी साथ घसीटते हुए रमशा से कहा था। मैं अकेली नहीं हूँ, मेरी अम्मी और बहन भी हैं। इसे दूसरी जानिब जाता देख रमशा ने फ़ौरन बताया था। ओह अच्छा, तो कोई बात नहीं, हम वही बैठ जाएंगे जहाँ तुम्हारी अम्मी और बहन है। अच्छा है ना, रास्ता भी आसानी से तय हो जाएगा। वो कोई परेशानी भी नहीं होगी, क्योंकि अपने मुल्क का बंदा अपना ही होता है। मानू ने मुस्कुराते हुए रमशा से कहा था। वह इस कदर फ्रैंक हो गई थी कि इसे जैसे बचपन की कोई पुरानी सहेली हो। ये तो इसकी नेचर थी, वो आसानी से फ्रैंक हो जाती थी और यहाँ तो इसके साथ जाने वाले लोग ही मिल रहे थे। इसे फिर भला वह कैसे इनके साथ फ्रैंक ना होती। अस्सलाम वालेकुम आंटी। इसने सवारा बेगम के पास आते ही मुस्कुराते हुए सलाम किया था, जैसे न जाने कब की शनासाई हो। वालेकुम अस्सलाम बेटा। सवारा बेगम ने रमशा को एक नज़र देख सलाम का जवाब दिया था, जिसे इससे पूछ रही हूँ कि ये कौन है, मगर वो क्या बताती कि वो कौन है जब इसे
जिसे खुद इल्म नहीं था। मेरा नाम महानूर है, ये मेरी दोस्त जवेर है। वो दरअसल मुझे भी यूरोप जाना है और उन्होंने भी तो सोचा जान पहचान बना लूँ, क्योंकि अपने मुल्क के लोग अपने ही होते हैं। महानूर ने अपना और जवेरिया का बताते हुए साथ ही अपने फ्रैंक होने का मकसद भी बताया था। हाँ, तुम्हारी बात बजा है बेटी, इससे मिलो, ये मेरी छोटी बेटी है जरीना। ये दोनों ही यूरोप जा रही हैं। सवारा बेगम ने मुस्कुराते हुए अपने पास बैठी जरीना का तारुफ करवाया, जिस पर महानूर मुस्कुराई थी। कुछ ही देर में फ्लाइट टेक ओवर की अनाउंसमेंट हो गई थी। फिर सारे कवायद व ज़वाबित से गुजरते हुए उन्होंने सवारा बेगम को अलविदा कहते जहाज़ में बैठ गई थी। वैसे तुम यूरोप कहाँ जा रही हो? जहाज़ के फ्लाइट करते ही कुछ देर की खामोशी के बाद खामोशी को तोड़ती महानूर ने रमशा से पूछा तो इत्तेफाक से इन तीनों की सीट पे एक साथ थी। न जाने किस्मत का क्या खेल था या महज इत्तेफाक। इससे तो वक्त ने पर्दा उठाना था। हम स्कॉलरशिप मिली है, कॉम्पिटिशन जीते थे तो इनाम में यूरोप जाने वाले कुछ दिन स्टे करने और वहाँ सबसे खूबसूरत कदीम लाइब्रेरी वेटिकन लाइब्रेरी देखने का मौका मिला है। रमशा ने इसे तफसील बताई। वाओ नाइस, यू नो व्हाट, मैं भी ख़ास उस लाइब्रेरी के लिए ही जा रही हूँ यूरोप। न जाने कब इसे देखने वहाँ जाने की तमन्ना दिल में जागी, पता भी नहीं चला। आप अपने आप ही सब वसीले बन देंगे और मैं यहाँ हूँ। महानूर ने भी हैरान की और मुस्कुराहट लिए से बताया था। इसकी बात सुनकर जरी हैरत ज़दा हुई थी, क्योंकि कुछ ही दिन तो हुए थे इसे भी अजीब से धुंधले ख्वाब आते हुए। वो सिलसिला भी अचानक शुरू हुआ था। अजीब सी कहानी शुरू हो गई थी जिसका इल्म किसी को नहीं था। महानूर का यूरोप जाना, जरी को अजीब सा ख्वाब आना, फिर इनका यूँ मिलना कोई मामूली बात तो न थी। ज़रूर इसमें कोई राज पोशीदा था जिस सब से वो अनजान थे। मगर हकीकत बहुत जल्द आश्कार होने वाली थी, जो कि बहुत हैरान कुन और हिला देने वाली साबित होती। ये थी व्यूअर्स एंड रीडर्स हमारी इस नावल की आज की दूसरी किस्त। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगी। चले जी इंशाल्लाह अगली किस्त में फिर से मुलाकात होती है। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक एंड कमेंट भी कर दिया करें। चले जी इंशाल्लाह अगली किस्त में फिर से मुलाकात होती है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।